our ultimately goal is to reach to the end. So thank you, sir. Thank you very much. Thanks. Right, sir. We can actually, sure. Yes. Sir, may I add a point? Yes. Values are caught rather than taught. Value for? Values are caught rather than taught. Taught. Absolutely true. Values on court. No, values are caught rather than taught. CAUGST, they are caught. Yeah. Values are caught rather than taught. Automatically being learned then. Yeah, it is effortlessly it is learned through some examples. Yeah. That sort of environment is to be prepared for that. That sort of environment should be prepared because often repeated action becomes habit. So yes, there are a lot of things. Things are not absolute. These things are always relative. So if we want to make somebody to learn something, for that habit should be repeated time and again. Only then it becomes a part of our habit. So this is to be yeah. So habit formation, it needs to be repeated, right? Action should be repeated again and again. Once an action is repeated time and again, it becomes habit. It becomes habit. Correct. That's right. Correct. So that's a beautiful thing. At the end of the match, losing team members to shake hands with the player of the winning side or the other side. Once this thing start, it will become their habit. Whenever they will lose or they'll win, they'll go and shake hands with each other. That's beautiful. And also they need to So basically, here you are talking about respect for others. Even it is a part of a manners, no, sir? Even it is part of manners. Yeah. Etiquette, manners. And we can also, sir, we can also imbibe in their minds that winning is not important. Participation in the games is more important than winning or losing. So we are not saying participation, we're saying competitiveness, and along with that respect. The values of sports is basically about, so you are talking about excellence. So basically competitiveness or striving for excellence, right? So it's, so you are talking about striving for excellence. And after that, it's about respect and friendship. So basically, all the three Olympic values which I talked about it yesterday. So all the three things are there. I mean, if you really look at it, these are the Olympic values. So can we talk about discipline? Discipline is a different aspect altogether. Discipline is not when you are actually playing a match. But I think it is more about discipline is because they have to follow some certain rules and regulations. Otherwise, that is respect for the rule. Discipline is a different aspect. So respect for rule is. So I'll just open 1 second. Yeah. So this is what I said when you're saying excellence is giving the best on the field. Respect and friendship. Right. So these are the three things which are important, right? These are the Olympic values also. Excellence, respect, and friendship. So all the three things are. Exactly, sir. So this is what happens, right? Whether you are on Olympic field or on a war ground. So basically it's about that. Okay. So fine. So we'll move on to another chapter. So we have spent, it can be developed further. So let's get into another one. Let's pick up, so that is class 8th. Let's pick up class 6th. Tyagarajan, sir? Yes, sir.
Yes, sir. Yeah, class 6th, if you could suggest anything, so we'll go. As said by one of our colleagues, lower classes we are not I am not acquainted with No, sir. So we will read right now, like we did just now. Take, sir, that poem Kite. Well, let us see. Kite would be better, I think. Kite? Yeah. Okay. Okay. Sir, the idea is that none of us know about anything. But Let us read and let us understand. Yes, absolutely. It just takes 5 minutes to read something. Let it, no problem. Yeah. What is the page number, sir? We can trace that out from page number. So page number 30, sir. 30. This is the page number 30. Just come below, sir. Come down. Yeah. Not coming. Still come down, sir. Poems are at the fag end of the chapter, sir. In the maybe. Sir, come down. Still come down. Is it wrong, sir? I think maybe just a second, sir. Let me check the NCERT link also. Yeah, same one. There's no problem. Okay. The kite. Is there. Okay. So 1 second. You're saying the kite is below somewhere? I think some below, sir. Down, maybe. Sag end of the. Quarrel. Okay. Why is the kite not there? Quarrel. Quarrel. Let it be. We will have a quarrel. No problem. Okay, the quarrel. Sir, it is after chapter 2 only, sir. Sir, okay, sir, it is there after. Sir, it is there after chapter 2, unit 2. Yeah, this is also wonderful poem, sir. No, the kite is in unit 2. Unit 2. At the end of unit 2, yes. Chapter 2. I have to go back. In chapter 2, sir, it is there. Lesson 2, sir. Lesson number 2. Which one? Class 6. Class 6, Honeysuckle. Yeah, so here only. So I am on Honeysuckle only. 1 second. Let me just. So class 6. Chapter 2. Chapter 2. Means after the lesson, this lesson name is. Sir, I got wrong. 1 second. Okay. Honeysuckle, I go to chapter 2. Okay. Page number 11. Page number 11. Okay. Shakti, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक कर लेना. Shakti, are you there? Maybe in the fag end. I will convey him, sir. I will convey him. Go back to the 25. Yeah. Yes. Okay. Others like to fly. Others like to fly kites. Have you ever tried to fly over? Read the poem of it, and a kite as it flies in the sky. How bright on the blue is a kite when it is new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship. Sir, anything. Then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rises, climbs to the crest of a gust of and pull. Then seems to rust as the wind falls. When string goes back slack, you wind it back and run until a new breeze blows, and its wings swell and up it goes. How bright on the blue is a kite when it is new, but a ragged thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. Sir, इसमें actually क्या है कि you can actually have all the motions actually. See, you actually have rhythmic motions where you are actually I mean ये sir, these are actually जो छोटे बच्चों के लिए है. Primary they actually have all this. Sir, so I personally feel that any match between the students and the teachers can be very helpful here.
We can just tell that how the young boys, how do they dive, how do they behave, how do they run, whereas the teachers who are not so young and being energetic like a young or blue kite, they cannot dive. So what do you think? I mean, is it possible to have some association with the games and this point? Sir, excuse me, sir. Sir, actually, we can conduct a competition between the students of this kite flying, sir. It can also be done if possible, Yes, because it kite will give flying a competition. That is a good idea. it will give a live picture, and it will definitely strengthen the idea of the poem, and it will suitable for them, sir, to learn it in very means straightforward way. Absolutely. Wonderful. Absolutely. Between the students also, and for contrast between the student and the teachers also. Even after the competition, we can distribute prizes also, sir, for them. So that will definitely make others also to get involved in such kind of competitions and play games also. These words also, they will come to know the meaning by going to the ground only. With a dive and a dip, it snaps, it's a tell. Everything is there. Activities should be experienced. Should be experienced. Should be experienced. Without experiencing, there is no climbs to the crust. Climbs to the crust of a gust and pulse. That is absolutely actually. By Even we going can to the ground only and flying the kite only, children will be able to get the enjoyment of this poem, that is the kite. The vocabulary can be taught. A vocabulary can be taught. Grammatical items like the word adjectives, nouns, and qualities too. Sir, actually, it's a good idea. John, sir, what do you say? I think it's a good idea. Medha, ma'am? Yes. What do you say, ma'am? I think it's a good idea to having competition between two groups of students. So that particular value of competitiveness, it can be brought out. And of course, the dive, dip, all these actions, it can be seen. They experience it. Soaring up and down. Yeah, soaring up, soaring down, coming down, dip. So all those actions are from when they experience it, when they fly the kite. Pooja ma'am, Rashmi ma'am, Medha ma'am, what is your this thing? Sir, actually, the poem itself is on flying kite only. So we cannot, have any other activity than taking the kite flying competition, or like some actually flying the kite one by one or in a group. One thing we can also make children learn, that is a competitive spirit. That's why, I mean, we cannot take any other activity. Here it is the only option. Only and it's the right thing. A competitive spirit, and it is part of the, it is sports integrated. Competitiveness, it is sports integrated. Is a game, na? Kite flying also is a type of a sport. So that's true. But when we talk about in the realistic level, for that we have to wait for the right opportunity. Whenever there is a special festival, just like Basant Panchami or anything else, only then we can do it. And especially just for exhibiting all these things, we cannot take the kites and Sir, Makar Sankranti mein hota hai na? Makar Sankranti. Right. On that on very 14th day, of January. On that very day. Sir, Gujarat, it is celebrated in a very great festivity. On that very day. In Gujarat, I tell you, sir, in Gujarat, it is celebrated with a pomp and show. And sir, one thing here we can do is children should make their own kites rather than purchasing it. That is absolutely that can be.
They should bring the kite paper and that the broomsticks, right? And correct. then they should make it as we used to do earlier in SUPW when I was young. We used to do it. We were small. I also did, madam. Yeah, making up a kite there. Until it was called some useful periods wasted. Yeah. And whosoever cuts that, it should be gifted to that child. By the owner. Then it will be some giving spirit also. Wholeheartedly. That too wholeheartedly. That cutting the kite is a competition. Competition. That's beautiful idea, madam. And you just see once one kite will got snapped, the whole school will run after that. Children will run after like anything. When it will come to the ground, they will definitely, sir. It should be done in some football ground or somewhere in the school only. Very open premise is required, definitely. And I tell you, the child or the group which gets that cut kite, you can see the ecstatic expression on the faces of the group. Yes. That you cannot measure them. Mr. Panigrahi, may I? And I am what I have experienced, even while going to catch the kite also, they get injured. That is true. Mr. And Panigrahi, they will run, they will get nothing. Yes, sir. May I just say a couple of things? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Sir, what I have just heard the conversations and discussions going on, the teaching of a poem. I fear that the learning objective of the poem should not be lost in the activity. Our purpose is not to, teach them how to fly a kite, but the, learning outcome is to be kept in view, that they recite the poem with proper accent, with proper pronunciation. And as per my experience, I have seen that our students, they do not pay much attention to the poetry when it comes to its recitation. And our teachers also don't focus much on poetry. They go on focusing much on prose. So I think somewhere the music in the poem, the recitation of the poem, it should take the first seat. The other things, should come second. This is what I want to say. Sir, then we can do something like this. Sir, I'm showing you something like this. This is something which is for the younger classes. We can actually do it like this. I'll just show you all the stuff which is there. I'll just take it along with the poem. So, sir, here we are saying fly like a butterfly. So, like in the poem, you have fly. It's like soar like a ship, fly like a climb to the crest. So you have the new breeze, the breeze blowing. So we can actually have those actions in the poem also, so that the children can actually do it in the classroom. They can do it on the field also. Like when I say swim like a swim like a dolphin, you have an action. So as an example, like you swim like a dolphin, you gallop like a horse, you jump like a kangaroo. Leaping is also there, sir. So we can actually use music, and also you can actually use the actions to express also, like as an. So there are a lot of those things which can all be actioned out, like diving and dipping. Diving and dipping is like a dolphin, right? So you're diving and dipping. Correct. So when I say soaring like a ship, you can actually do a star jump or whatever. So you can like this one. So you soar like a ship, like in this jumping. All of this. So you do a tide. Tide is like you do a hand just swimming karte. So you can do like a free stroke. Then you so all of this. I mean, when you do string goes back, so you can actually so all this can also be made actionable. So with music, each of this thing can be done from expression point of view also. And sir, shall I intervene in between, Sujit sir? Yes. How nice it would be that if the children are flying the kite and the teacher is recording it, right? They'll record, they'll make a video, and when they'll come back to the class, in the next class might be,
they'll be pausing the video, and wherever the lines are matching with that action, they can tell. Important call hai. I've just taken the call. You discuss. You can discuss. Okay, okay. The sir who was saying like the basic idea of poem. So I agree with that, that once a lesson starts, it's introduced and then it goes on, it progresses. So here, this is just part of it, that the child first should come into the chapter. So when we'll be reciting, then there is another part is understanding these words, so that the child can actually implement it somewhere else also as language perspective. So when we'll record the video and we can play it again, then whichever line is matching with that action, the teacher can easily tell, see, this line is dive and dip. So here we can pause one video and we can tell, see, this is diving and dipping. It's like I'm having an idea that it could be integrated well with the poem afterwards. And singing and reciting is definitely there. Man or woman also. Riding the wind can only, this kind of terminology can be taught here very nicely by actual flying the kites. Definitely, that is why I am saying riding the, that afterwards. Yeah. Ma'am, and that poem can be written on the same page through that the children are making kite now. They can write this poem on that A4 size sheet or any which type of paper they are using. They can do it like this. So they can be a written. It can be a written practice as well. Yeah. And ma'am, there will be so many things here, because art and craft is also integrating, getting integrated. Yes. The singing is also getting integrated. And when we pause the videos in between and we tell that, okay, children, you tell by which line this clip is getting integrated. So children will also see the poem again and again to find out where this action is actually being done in the poem. And they'll find out where is it, because I have seen, ma'am, although actually I'm thinking that they can actually do like things like doodles on the kite, right? I mean, with shape, I mean, all the shapes which are there, they can do doodle, they can write the poem also on that. Definitely. And they can color them also. So they actually, when they're making their own kite, we can tell them that they have to take all the elements from the poem, put it on the kite. Yes, sir. So may I add something, sir? Yes, sir. Yes, sir. Can we just find out the activities conducted by the kite, the way it is going up, again it is coming down, how the way it spreads to the sky? These things, can it be told to the children to find it out from the poem? Maybe that's what I am. Sujit sir, that's what I am saying, that when the whole game will be over, the competition will be over, and if it is recorded and if it is played again, and then if it is paused at different points, and children must see the poem and they have to find out which line is getting collaborated with that clip. मैम only thing है जो अभी जुगल किशोर सर कह रहे थे, एक एस्पेक्ट जो कह रहे थे वो पॉइंट ये है कि that articulation और जो rhythmic aspects है ना poem का, जो how do you read out a poem, वो aspect एक important है. And I think अगर वो कहीं ना वो तो देखिए है ही है ना, वो obviously गेम खेलते समय नहीं होगा. सुजीत सर, मैडम एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअल में ये गेम खेलते टाइम हम कमेंट्री करके बच्चों से राइम करवा भी सकते हैं अगर चाहे तो. ये भी कर सकते हैं. हाँ, उसको कमेंट्री के रूप में दे सकते हैं कि लुक एट द काइट, हाउ इज इट सोरिंग हाई, और उसमें फिर जो पोएम का चीज है वो भी बताते चलेंगे, साथ साथ दूसरे उसके एस्पेक्ट्स को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. May I say something, sir? Sujit sir, may I say something? Yes. Making can also be done. What Kishore ji was saying is fine, but the very concept of sports pedagogy is to usher in interest into the learning of teaching. That is by the children. So as it is,
since our children coming from regional language background and they get stuck up. Geeta ma'am, can you mute, please? They get stuck up with the learning so much that they hardly find any interest in it. So taking the title of the poem and make them play a game and then again bring them back to class, and then if you make them teach anything, I think that would go better into their heads than without making them do it. Sir, one thing. Right, sir. I agree. Yes, sir. We can ask children to prepare kites. Yeah, kites exactly. With a big tail. Kites with a big tail. Okay, and let the prepared kite, because that will give real joy to the children there. Yes, sir. That is what we wrote. Yeah. No, they have to make their own kite. Yeah. Kite making will also be learned by them. Even putting the string on the kite is also one kind of a skill. So that also will be learned by them, sir. So there's a lot of there is a lot of mathematics. There is lot of mathematics is also there. How to put this activity is actually this is basically about it has this one. It has mathematics, it has physics. Just about everything is there actually. Yeah. You learn about until the string is correct, the kite will not fly. When the string is correct, well balanced one, then only the kite will fly. Otherwise, it will not fly. So many of the things can be taught here. Yeah, so it has mathematics, it has physics, it has poem. Sir, art. Even Sujit sir, even flying kite is an art. And as far as I have seen, boys really do that, but many of the girls would have never flown a kite. So might be they will also experience it for the first time that okay, this is how we can fly the kite. Everything said. It has got all the, what do you say, all aspects have been thought of. But what Mr. Jugal Kishore had said, I think that should also be taken note of. I was disconnected for some time because of the internet problem. But what Mr. Jugal Kishore said was that the essence of a poem, that is appreciating the rhythm, appreciating the rhyming of the words, and also the emotional aspects should also be taken into consideration. And I think what could be suggested is that an action song or some action activity, maybe of teaching of a poem, can also be thought of. Because he is very right in saying that even a poem is taught like a prose, as if we are going to tell them something about a story or something like that. But what is a poem actually trying to, make the children understand is about how the life is, how difficult it is or how smooth it is as it goes up and down. So I think that aspect should also be taken into consideration when we are thinking anything about poems. Chauhan sir, I have an idea here. Chauhan sir, अगर ये वाला वीडियो जो है ये हम हमारे कंप्यूटर टीचर को दे दें और इसको इंग्लिश के टीचर उनके साथ बैठ के इसी बच्चों के खेलते हुए वीडियो में ही इस पोएम को अगर रिदमिकली उस क्लिपिंग के साथ गा के एडिट कर दें और उसको दिखा दें तो मजा आ जाए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब कि जो पोएम का जो एसेंस है ना, उसको भी कहीं ना कहीं हमको जोड़ने की कोशिश कर लेनी चाहिए, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि पोएम और प्रोज एक ही हो जाए। हाँ, तो सर थोड़ा सा होमवर्क टीचर को भी मिलेगा ना इसमें। हाँ, वो तो हम ही कर रहे हैं होमवर्क, तो उनको भी तो मिलेगा ही। हाँ, उनको भी तो मिलेगा। मैम एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हैं वो घर पे भी एडिट कर लेते हैं इसको। बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। Aspect of going up and down and riding the wing, that is also important. That is true, but one thing is there, whether we are integrating poem or prose with the sports. Not way. We should not forget the basic objective of teaching. That is, what is the basic objective while we are teaching a prose, while we are teaching a poetry? That the teacher is supposed to keep in mind. थोड़ा सा loudly बोलेगा, थोड़ा मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। Sir, मेरा ये कहने, I want to convey that the basic objective of teaching, for example, the basic objective of teaching a prose or a poetry, that we should not forget. Yes, that is while integrating any topic or any subject.
with sports or arts or anything. Yes, that is what I also feel, that we should try to at least have that particular aspect of the behind that chapter or the lesson. Yeah, concept behind taken into consideration. Right. Okay. So teaching of languages is something, you know, which probably the science and mathematics people, you know, may not be able to think in the right perspective, because वो हर एक चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा इसमें है क्या, वो अगर जो पॉइंट को देखा जाए कि इसमें है क्या, बोले तो ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं और क्या कर रहे हैं. And this is what we feel. We have to see the, you know, what the message the poet is actually trying to give, keeping in view the contents of the poem. Joy of flying a kite. The ups and downs of life. Yes, exactly. Ups and downs of life is reflected. Joy is also there. One of the important things that when kite flying is done. Sir, थोड़ा माइक के पास से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Rise and the fall, which occur. It refers to the ups and downs of life. ठीक है सर, एक और देखें क्या? ये ठीक है, ठीक है. अभी हमने वो किया था क्लास 6, क्लास 7 का एक देखते हैं सर. इंग्लिश सर, क्लास 7 का एक 7 सर वो ओपन करिए. मैं खोल रहा हूँ सर. टेक्स्ट बुक ले लो सर. टेक्स्ट बुक. हाँ सर, बताइए कौन सा वाला? I have also not gone through actually, sir. Our problem is like this only, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं सर, सब साथ में सीख रहे हैं सर, हम भी पढ़ रहे हैं. First lesson also. Three questions. Three questions, sir. You take 3 questions. Okay, 3 questions on the squirrel. We'll read the chapter now, sir. सर ऐसे ही होता है ना, लाइफ में सब कुछ प्रिपेयर नहीं होता है. हाँ, सही. In these 2 days, first time I see you smiling. That kite flying was a joy for me, sir. When I was in Ahmednagar, I used to fly it like anything. By going to up on the building there, it was a very tremendous, joyful part of my life. But this activity itself, you know, you can add on some of the lessons of other subjects also. Yeah. Like you said, of mathematics or other things. So that with one activity, you know, you can have different lessons covered. Sir, ये है 3 questions. इसको पढ़ लेते हैं, 2 मिनट लगे, then we can answer. What is the right time to begin something? Which people should be? सर मन में पढ़ लीजिए सर, अपने आप माइंड में पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर वो सबका पेस अलग अलग होता है.
कुंडी लगा लो। Yeah. But yeah, it's about the last में we can actually think about what is to be the importance of now, importance of most necessary person. Yeah. He is the person you are with that particular moment. Yeah, so this is what basically one of the most important time is now, the most important necessary person. Is the person you are with. The most important business is to do that person good, because we are sent, we were Most sent important business for that to do. Yeah. So ये है, तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं, which can be इसमें रोल प्ले हो सकता है सर. Sujit sir. Yes, ma'am. Sujit sir, in this book only there is one chapter, the tiny teacher. I think it was the first. That is. मैम इसी को करते हैं. सर वो तो ठीक है, एक बात बता रही हूँ कि वो जो टाइनी टीचर है उसमें वो एंट्स के बारे में है कि एंट्स टीम वर्क कितना अच्छे से करती हैं, और ये तो उसमें गेम हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स का देखा था, बट यहाँ ठीक है, इसको करते हैं, इसको हम करते हैं. मैडम इस क्लास में नहीं, वो टाइनी टीचर्स 7th में है. earlier syllabus. 6th में. It is in 7th, sir. No, not in 7th, not 7th, madam. 6th class.
It is not in 7th class. Ma'am, 7th class only my daughter is there, and it is the first chapter, and alien hand. Textbook or supplementary? Reading. Huh? Yeah. Supplementary. In supplementary reading, Okay, it is the first chapter, the tiny teacher. Okay, no. एक इसी को करते हैं ना, the 3 questions. हाँ, ठीक है. ठीक है, जो है मतलब वही तो है ना चैलेंज तो जो सामने इजी है वो तो कर लेंगे. तो क्लास 7th का the 3 questions. क्या एक्टिविटी क्या कर सकते हैं? We can divide children in 2 groups, sir. Okay. सर डिस्कस कर लेते हैं, मैं फिर लिखूंगा. Okay. हाँ. Some of them will play the role of a messengers. Actually, being a story, it is actually a story. Role play. Role play is the best Role option play. here. Best option. How will we do it, sir? बताइए. Now we have to give a different role to the children there. That's all. Okay. Somebody will do king's role. Somebody will do hermit's role. Some would be messenger. Some would be horses. But how do you involve all the entire class? Sir, there is no element of sports in it, sir. Yes, there is no sport, but excuse me, sir. Yeah, horse galloping they can run from one place to other place. Patil sir, हाँ बताइए. Sir, there is a one word soldiers. Can we have a march past also? Okay, नहीं उसमें क्या होगा सर उसमें मार्च पास से, लेकिन हमारे स्टोरी के साथ क्या है उसका लिंकेज? नहीं, सोल्जर्स की आइडिया हमें यदि if we want to make them clear idea about the soldiers. So it is not about soldiers, sir. ये पूरा story is basically about that is different. Moral is different. हाँ सर, केशव सर बताइए, आप कुछ बता रहे थे. केशव सर कुछ बोल रहे थे. और कोई आइडियाज? Questioning attitude can be developed. Which one? Which attitude, sir? Questioning. No. But this is not about questioning. This is more about. It is about doing a good thing. It is doing something good for others. Yeah. It's basically selflessly he's doing things. So yes. It's more about it's about looking for an answer and doing things at the present now. And also in a positive frame of mind without with a positive frame of mind. Yeah. So so there's a sense of purpose also, and when you do good for somebody, they also do good for you. Yeah, correct. Yes. So that message is given through the story. Yeah. Good things are just like a tit for tat. If you do good, you'll also receive good. One thing is there. Should I share my opinion also? Even with the help of a kabaddi match, we can convey this message very easily. In kabaddi match, when one team is having only one player, then he is the only important player. He goes and enters the territory of the opposite team, kills another man and wins one man. They become 2. And that man is very important. From 1, they become 2. And when another person comes for the raid and both joins and kill that man, then their strength increases to 3. So this very idea with the help of this game can also be conveyed, I personally feel. I don't know whether you agree or disagree. This is what I was thinking. Any other good ideas, sir?
चौहान सर, A good deed begets good deeds. मैंने एक्चुअली पूरा पढ़ा नहीं है और दूसरा मेरे को सुनाई बहुत कम दे रहा है आवाज. So I'm not able to follow what people are saying. सर मैं आपको स्टोरी को एक लाइन में समझाता हूँ. In my opinion, good to you. I think I agree with Sarma sir. Actually, we can conduct a kabaddi match, and the best person who lead the team to win, sir, that will be considered as the most important person. And the time when he just simply turned out the things, that will be the most that was the important time. So this kind of concept can be dragged from this kind of events only, sir. Because competition of through any match, sir, we can just derive out the best person, the best moment like this. I think we can evolve out, in my opinion. So through sports only, this the gist of the lesson can be. I think we can just simply brought out. Sir, when two persons shall I play give a game, one idea? Yes. When two persons Sujit, play. sir? Yes, ma'am. बताइए. Okay, ma'am is saying something. Let us hear first. When two persons play a match, the most important thing when two persons play a match. Ma'am, just a small this thing. Anytime you say no, when it will always be two teams, not two persons. Yeah, okay. When two teams play a game, the most important thing that is there in their mind is to win, to win the match. So that is the most important thing. They do not think about anything. They are focused in playing the game with the intention of winning. Whether you can apply this one here, because the king went on digging. He went on digging one after the other, and he was focused only in doing that work. So at that particular moment, that was the most important work that he has to do. Sujit sir, shall I say something? Yeah, yes, मैम जरा इसमें चौहान सर को एक बार बताता हूँ. चौहान सर एक्चुअली क्या है कि ये किंग के बारे में है, ठीक है. वो अपने लाइफ में सोचता है वो कभी फेल नहीं होता है. If he knew three things, so उसके 3 questions उसके था कि what is the right time to begin something. Second question है कि which people should he listen to. Third है which is the most important thing for him to do. ये 3 question का वो आंसर चाहता था कि अगर मुझे ये 3 चीजें मिल जाएगा तो मैं कभी फेल नहीं होगा लाइफ में, ठीक है. उसने सारे लोगों को भेजता रहा, 22 लोगों को भेजता रहा कि तीनों क्वेश्चंस का आंसर रहो. सब लोग अलग अलग आंसर्स लेके आए, ठीक है. किसी ने बोला कि राइट टाइम, राइट पर्सन कौन है. कोई सोचा कि डॉक्टर है, कोई सोचा कोई सोल्जर है, किसी ने बोला व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, किसी ने बोला जितना इंपॉर्टेंट है. इस तरीके से कुछ ये कर दो. तो फाइनली वो एक साधु के पास जाता है, हर्मिट के पास. हर्मिट के पास पहुंचता है तो हर्मिट ना खुदाई कर रहा होता है मिट्टी, तो इसको दे देता है कि आप इसको करो, आई टेल यू द आंसर. तब वो किंग कर रहा होता है 1 2 करके ये करके, फिर भी उसको बोलता है कि अच्छा बताओ आंसर, तभी वो नहीं बताते हैं. सो ही कीप्स डूइंग इट. तो हर्मिट उसको पीछे बोलता है कि पीछे देखो कोई भाग के आ रहा है. अगले दिन बोलता है, जब भाग रहे आता है तो एक आदमी आता है जिसका एक सोल्जर भाग के आता है तो उसको वुंडेड है उसके उसमें चेस्ट में. तो किंग जो है विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग ही स्टार्ट्स. गायकवाड सर सेकंड बोलून क्या सर, एक सेकंड सर. तो वो उसका ट्रीटमेंट करने लगता है. You go to this one. तो फाइनली there you see the lesson plan. तो फाइनली वो ठीक हो जाता है ये सोल्जर. तो सोल्जर उसको पहचान लेता है किंग को, क्योंकि किंग हैड कम एज अ नॉर्मल पर्सन. कहता है मैं एक्चुअली आपको मारने आया था, लेकिन आपकी बॉडीगार्ड ने मुझे चोट पहुंचा दिया, बट आपने मुझे बचा लिया, तो अब मैं आपको क्या मारूंगा, मैं आपका आगे से हमेशा ये करूंगा. तो फिर उसके बाद फिर वो हर्मिट से पूछता है. तो हर्मिट बोलता है कि हर्मिट फिर 3 आंसर्स बताता है. हर्मिट कहता है कि देयर आर ओनली 3 थिंग्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ. पहला वाले कहते हैं इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज दैट इज ओनली टाइम यू हैव अंडर कंट्रोल. बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज अ पर्सन हु इज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. किसी को पता नहीं आगे क्या होगा. And third most important thing, do good to the person there because we have sent the world for that purpose. ये तीन purpose है उसके. Yes ma'am, बताइए ma'am.
नहीं तो जैसे अभी कह रहे थे कि जैसे लाइक कबड्डी इज अ गेम व्हिच इज टू बी प्लेड, इसमें नाव का भी आ गया, एंड द टीम व्हिच विंस विल हैव टू डू अ प्लांटेशन. Let them plant. So उसमें ये आ जाएगा कि do something for the future also. Some good activity. और मैम भी कुछ कह रहे थे, सुन लेते हैं. This is also good idea. Yes मैम, बताइए पूजा मैम. मैम कुछ बता रहे थे. Sujit sir, I was thinking let us go for something where इसके जो पहले 3 क्वेश्चन थे, एक तो सही व्यक्ति को उसको सुनना है और उसको राइट डिसीजन लेने के लिए या खुश रहने के लिए उसको अच्छा काम करना है, और तीसरा है कि उसको एक मोमेंट पे राइट डिसीजन लेना है. यही मोमेंट हमारी जिंदगी का मोमेंट है, इसी में जीना है ना. तो हम जितना जल्दी डिसीजन लेंगे और राइट डिसीजन लेंगे, सही व्यक्ति को सुनेंगे. तो मेरा मानना ऐसा था कि हम कोई एक्टिविटी प्लान करते. सपोज हमें प्लान करना है एक प्लांट को लगाना, या हम इसमें क्ले मॉडलिंग को लेते. कई टीमें होती है, उनको हमने अगर क्लेस दे दिए और उनको हम एक दे दे कि आप एक आइडिया पे जाके एक लैंड. मैम ये स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बताइए, क्ले मॉडलिंग तो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड नहीं है. सर मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है कि अगर हम इसे कबड्डी से थोड़ा सा एसोसिएट करते हैं, मैं आई एम नॉट एम्फसाइजिंग माय पॉइंट, तो हम Starting can be done by this. Starting activity चैप्टर. can be. हेलो रश्मि मैम बताइए. यस सर, सर बताइए. सर जो इस चैप्टर का इसेंस है ना, जो कि हु इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट and what is the important time. So kabaddi mein, in kabaddi, when one man is left alone, he at that moment he is supposed to take the decision whether he should save himself, he should caught the readers, or he should save himself for the raid. So that is the most important time to take the most important decision. And then you just see here, with this man is such a powerful man that he goes for the raid or he catches the raider. So by doing this action, he brings strength to he wins a point for his team, and one player becomes alive. So from 1, they become 2. So somewhere we can associate the idea of this very chapter with the help of the game of kabaddi, by making the 2 teams play. That how the games also convey such beautiful ideas, as has been conveyed in this chapter. This is a particular situation, sir. This would be a particular situation where only one person would be left. But there could be major part of the game would be that there is this situation may come, in kabaddi. Chauhan sir, but may not come also. It comes. It comes, Chauhan sir. It is quite evident. In kabaddi, it comes. In kabaddi, it happens. Only 1 or 2 players left. It happens. I mean, this is what idea. I mean, I'm not emphasizing. I mean, it was coming in my mind that we can bring this idea into home also by the help of this game. Other games we can also. Possible. We can think about other games. Sir, ये तो actually cricket में होता है, जैसे 17 for 5 हो गया cricket ये कपिल देव का. Yes, absolutely. One man wins. Yes. That musical chair also it is possible, sir. Sorry. Musical chair. Yeah, it is. Sir, ये तो dodgeball में भी होता है, मतलब everywhere. I mean, wherever a team has to come back. Sir, good afternoon. Yes, sir. Sir, good afternoon. मैं अमृतसर से हूँ, मैंने लाई अमृतसर से. हाँ सर. ये I appreciate your initiative कि जो sports को teaching में जो है वो लाया जा रहा है. तो ये काम जो है बड़े इंटरेस्ट के साथ करने वाला है. ये जो इसको हम तभी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जब हमारे पास पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है, टीचर तो खैर पढ़ाते ही हैं, तो मेरा इस कंसेप्ट के ऊपर एक
सबमिशन है कि हम इनकी एक क्लास में ना 4 टीमें बना लें, 4 टीमें बना लें। उनको ये जो स्टोरी है, बेसिकली ये एक ड्रामा ही होता है। पहले कोई एक फिजिकल एक्टिविटी या इमेजिनेशन होती है, तभी स्टोरी बनती है। तो हम वो 4 टीमें जो बना लेंगे, पहले उनको ये स्टोरी स्किट के ऊपर ले आए, स्टेज के ऊपर। तो 2 टीमें जो हैं वो एक साइड हो गई, 2 एक साइड हो गई। उनमें जो विनर होंगे, जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे, तो उनको हम कबड्डी का मैच करा दें, तो दोनों ही बातें उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी सर। समझा। थोड़ा सा ये करके समझाएंगे, मतलब ये डिफरेंस क्या है? अभी जैसे बात कर रहे थे कि 2 टीम कबड्डी खेलेंगे, सेम है कि डिफरेंस? नहीं, कबड्डी खेल लें, बैडमिंटन खेल लें, कोई गेम खेल लें। हाँ, वो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको गेमीफाई करना या इसको इंटरेस्ट डेवलप करना, कि पहले हम इस चीज को स्टेज के ऊपर एक स्किट प्रेजेंट करें, जिसमें एक क्लास में जैसे मान लो 20 बच्चे हैं, तो 3 या 4 लोग इन्वॉल्व होंगे। तो 2 टीमें एक साइड हो जाएंगी, 2 टीमें एक साइड हो जाएंगी, तो वो स्किट प्रेजेंट करेंगे एट द फर्स्ट इंस्टेंस। तो उनमें जो भी बेस्ट परफॉर्मर होंगे, दोज हु विल बी बेस्ट परफॉर्मर, उनके बीच मैच करा दें। तो ये एक सेंस डेवलप होगी कि जो है वो जो बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नहीं, खेलने के लिए जीतना है, ये भी इंस्पायरेशन अच्छा है ना, क्योंकि रोल प्ले के अलावा इसमें कुछ निकल नहीं रहा है। तो थ्रू रोल प्ले हम लोग पहले जैसे सब बोल रहे हैं वैसे स्किट ये करते, और मुझे खेलना है बोल के बच्चे अच्छा सा परफॉर्मेंस भी दे देंगे। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ सर। राइट। हाँ, इसमें जो पहला क्वेश्चन है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम जो हमारे पास है और बेस्ट पर्सन जो है। तो देखिए, एक आर्मी पर्सनल जो है, जो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा है, उसको हम बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं बता सकते कि भाई आप किसी को गोली नहीं मारना, आपका खून बह जाएगा, उसका बह जाएगा। उस वक्त उसके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि ही शुड किल, जो है वो बॉर्डर को क्रॉस करते देखता है। सिमिलरली जो बैडमिंटन खेल रहा है, तो उसको कोई आता है कि आओ मिस्टर श्याम, हम लोग जो है वो कहीं आम खाने चलते हैं, तो शाम का जो फोकस है उस वक्त बैडमिंटन के ऊपर ही होना चाहिए कि भाई अभी हम गेम खेल रहे हैं, इस गेम को जो है वो फर्स्ट हम फाइनल करेंगे, देन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो इस तरीके से भी हम बता सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई? थैंक यू सो मच सर। और कोई आइडियाज? इसको थोड़ी सी और डेवलप करने की जरूरत है, आई थिंक। ये बहुत अब्स्ट्रैक्ट है, आई थिंक। क्या इसमें ये तीनों प्रश्न आ जाते हैं सर? ठीक है, ठीक है सर। सर ये करते हैं अभी जो इंग्लिश है, क्योंकि इसको ये करते हैं हम, ये 15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, विल गो टू हिंदी। तो इंग्लिश के लिए हम फ्राइडे के दिन फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स वी विल बी देयर। तो अगर आप थोड़ी सी कुछ एक्टिविटीज सोच लीजिए, और थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होगा तो ये कर लीजिए। मैं आपको सबको ये बता देता हूँ कि जब आप लॉग इन करेंगे इसमें, आप इस एप्लीकेशन में लॉग इन करेंगे, तो आपको एकेडमिक में जाके आप कोई भी सब्जेक्ट को ढूंढ के देख सकते हैं, जो भी चैप्टर है। और कुछ एक्टिविटीज हमने ऑलरेडी बना रखा है, वो आप एक्टिविटीज वाले टैब में जाएंगे तो ऑलमोस्ट 540 एक्टिविटीज है, एंड ये एक्टिविटीज को आप चेक कर सकते हैं। कोई एक्टिविटी आपको लगे कि इनमें से कुछ आप यूज कर सकते हैं कहीं पे, तो यू कैन लुक एट इट ऑल्सो। काफी एक्टिविटीज है इसमें, तो आप इसको देख भी सकते हैं। इनमें से कुछ एक्टिविटी अगर हम आपको किसी गेम में कहीं पे यूज करना है, हम उसको यूज भी कर सकते हैं। I hope. Sir. Yes. Sir, in the supplementary reader. Yes, ma'am. In supplementary reader of class 8, we do find lessons which promote sports activities. Okay, ma'am. Like, for example,
the supplementary reader of class 8, that lesson 3, chapter 3, the selfish giant. So there we find the giant, in the giant's garden, the children playing. So then there different kinds of games can be played by the children. So that can be taken as an example. Then we also have in the supplementary reader that lesson fight. In fight, we have two kinds of games. One is wrestling and the other is swimming. Okay. Then again, if we go to the lessons, this children at work, second lesson of this class 8 supplementary reader, they're running. You find the activity running. So, ma'am, you can do that. I think, I mean, those who have that responsibility can actually create those activities. And the idea is that you have to do it along with the teachers. So today's exercise was only to, I'm sure there are some direct activities also, but in case there are no direct activities, we'll have to think creatively. Okay, so on Friday we will meet. Friday from 4 p.m. English will have anyone who has any doubt, any question, you can do that. Meanwhile, you can actually create the teacher-wise mapping with the chapters. You can actually do that thing, that exercise, and share it with us. So, yeah. Friday at what time, sir? At what time you are going to meet? 4 o'clock, sir. 4 o'clock. 4 o'clock. Yeah, if you in the evening. Yes, sir. Yes, sir. Friday, what day it is coming, sir? So, देखना पड़ेगा actually. 16. So by the time we'll distribute work to the teachers, that will be good. Yes, sir. That will be helpful. Yeah, because we got the teachers and we'll distribute work with the teachers there. Okay, yes, sir. And we'll whatever that is you're expecting or we are expecting, we'll tell them in detail. And let us see what happens there. Monday or Tuesday, we'll be having a meeting with the teachers there. Okay, okay, sir. Our group, whatever group that is the region group. Okay, sir. Okay, thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thanks so much. Thank you very much, sir. It is very interactive session today. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. बहुत अच्छा लगा. Thank you, sir. Thank you. So let's move to Hindi. If the Hindi, let's Divedi sir, if we can actually take this thing, class 6 textbook. Divedi sir, are you there? Sujit sir, shall we quickly just find out if all the in-charge principals are available, principals and vice principals, region-wise? That's what I'm just sharing that. That's why I said. So, so here you're talking about this only, right? Yeah. So Divedi sir, if he's there, yeah, he's there. AK Divedi sir is there. So, but I think his yes, his audio is also there. Divedi sir, can you unmute? Okay. Let's do one thing. Let's move to the next one. Course P, sir. Actually, we don't have any course P. We can actually. Yeah. Kamna, madam, are you there? Yes, sir. I'm here. Yes, ma'am. So let's do one thing, ma'am. We'll just let's pick up a lesson from. Just a second. So, ma'am, this is class. So yours is class 7th, course B. Course B is this one, right? I don't know. Ma'am, is this one? Course B, I don't know. In Hindi lena, Hindi. Yeah, Hindi. Sorry, may we. Sorry. This one, right? Yeah, English.
नहीं, हिंदी हिंदी दुर्वा है ना मैम, कोर्स भी दुर्वा ही होगा ना? यस सर, यस सर जी, हाँ हाँ, दुर्वा हिंदी बी कोर्स सर। हाँ, इसमें मैम कौन सा वाला चैप्टर आपको अगर ध्यान है, कोई भी चैप्टर देख लें? सर कोई भी लीजिए, क्योंकि हमारी भी एक्वेंटेंस नहीं है बी कोर्स के साथ। कोई बात नहीं मैम, we'll look at it together, so not a problem. सबसे अच्छा यही होता है मैम, एक्विडेंस ना हो तो फ्रेश होता है थिंकिंग। जी जी सर। ठीक है, ये है, मैं माय हिंदी इज बैड सो लव टू आई कैन रीड, बट बाकी मैं माइंड में पढ़ सकता हूँ, बाकी मैं स्क्रॉल कर लूंगा धीरे धीरे। आगे जाऊं? Should I go forward? Sir, can it be associated with badminton? ये रश्मि मैम और चौहान सर। Yes, sir. I'm thinking, sir, because this book is little new. मैम ये स्टोरी थोड़ा ये उसमें समझा देंगे, छोटे से उसमें। मैम मुझे, मेरा हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं है, तो आप थोड़ा सा ऐसे समझा देंगे तो इट बी इजियर। सर मैं पढ़ रही हूँ पोएम, क्योंकि हमारी ना वसंत पुस्तक है, तो मैं अभी फर्स्ट टाइम कविता पढ़ी, मैं पढ़ के अभी 1 मिनट में अभी करती हूँ। हाँ, या तो सर जी क्षमा कीजिए। कामना मैम अगर आपको, हाँ मतलब ये जो अभी आपने पढ़ा इसके बाद, यस सर बताइए। सर तब तक अब दुर्वा भाग 3 सर, 9वां पाठ है, एक खिलाड़ी की कुछ यादें। कहाँ पे? क्लास के लिए। 8th क्लास? 8th क्लास बी कोर्स सर, दुर्वा से ही, एक खिलाड़ी की कुछ यादें। सर जो सिंपल है वो तो कर लेंगे, वो तो जहाँ पे खिलाड़ी वगैरह है वो सब तो कर ही लेंगे ना उसमें। ठीक है सर। वो तो सर एक्चुअली जो है हमारे सामने उसको करे तो बेटर है ना। जो डिफिकल्ट है वो तो करे ना, इजी तो हो जाता है सर। जी सर, ओके सर, ठीक है। तो लेट अस डू द डिफिकल्ट, इजियर वन से सब कुछ समझ में आता है, जैसे फोर्स में लिखा होता है पुश पुल, वो तो हमें पता है कि कौन सा वाला चैप्टर था सर, ये क्लास 6th का था ना सर? अभी हम कौन सा कर रहे थे? 7th का था। 8th का था। 7th में। हाँ, अभी जो कर रहे थे वो 7th। दो एक साथ कर दिया हूं, so that it's probably little easier to see. सर ये उड़ने की बात हो रही है ना, तो चिड़िया और बच्चा, तो उसमें हम इसको एक डाल से दूसरी डाली नीले गगन की बात हो रही है, तो हम लोग इसको मेरे ख्याल से बैडमिंटन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। मैम थोड़ा सा पोएम के बारे में बता देंगे मैम? मैं पोएम पता नहीं मुझे एक्चुअली, मैं सुजीत सर मैं आपको बताती हूँ।
इट इज लाइक एक अंडे में से एक चूजा निकला है, ठीक है, और वो पहले तो आपस में इधर उधर पत्तियां वत्तियां हिलता विलता देखता रहता है ना। तो वो सोचता है कि बस मेरे को उड़ना आ गया, तो माँ से पूछता है कि मैं उड़ने लगा क्या, कैन आई फ्लाई, तो मैं नहीं। फिर वो थोड़ा इधर उधर फूल और फल वगैरह भी थोड़ा थोड़ा डाली डाली फुदक फुदक के देखता है। फिर वो सोचता है फुदकने से, है ना, समझ रहे हैं। अभी उसने क्या किया, फुदक, नेक्स्ट स्टेप अगेन ही आस्क्ड कि कैन आई फ्लाई। मदर बोलती नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो तू मेरा बच्चा ही है, बरमाया है तो अभी भी तू मेरा छोटा बच्चा ही है। फिर वो सर थोड़ा सा और नीचे उतरता है, नीचे के दाने चुनता है। तो उसके बाद उसको मतलब नाउ वन मोर स्टेप फॉरवर्ड, अगेन ही आस्क्ड कि कैन आई फ्लाई, नहीं अभी भी नहीं। लेकिन जब सर उसको अंदर से आवाज आती है ना, ओके कम ऑन नाउ यू फ्लाई, और वो जब अपने पंख फड़फड़ा के आसमान में, खुले आसमान में उड़ता है और उसको पूछता है नाउ कैन आई फ्लाई, वो बोलती है यस नाउ यू हैव द स्ट्रेंथ इन योर विंग्स व्हिच आर देयर व्हिच विल लेट यू फ्लाई। तो इट इज द इनर वॉइस and the strength from inner side and the right time when that child that chick is ready to fly. ये है, this is the crux of poem, कि एक समय आएगा ये थोड़ा थोड़ा करने से। तो I think sir it is like learning step by step. This is the crux. Step by step and also self confidence once you have the self confidence. हाँ सर, उसको एक वाक्य में बोलेंगे तो सर जी, उसको एक वाक्य में बोलेंगे तो चिड़िया के बच्चे को अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं है, संदेह है, और माँ उसको भरोसा देती है कि आगे चलकर वो विकास कर पाएगा, उड़ पाएगा। तो यहाँ पे प्रेरणा वाली बात और अपनी क्षमता पर अपने को कमजोर समझने वाली बात, दो बातों का वर्णन हुआ सर। एक तो अपने पर विश्वास नहीं है, तब उसकी माँ उसे प्रेरणा देती है सर। नया गेम कोई स्टार्ट करने के लिए बच्चों को जिसमें नई स्किल्स की जरूरत है, सो दैट दे कैन लर्न द न्यू स्किल्स एंड ग्रेजुअली गेट एन परफेक्शन इन दैट, दे कैन कीप ऑन दोस लाइक। इसको सर हाई जंप या लॉन्ग जंप से रिलेट कर सकते हैं। बच्चे थोड़ा थोड़ा जंप करेंगे, अंत में पूरा ऊंचा जंप लगा देंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया सर। एक्चुअली क्या है कि सर ये भी कर सकते हैं कि हम जब ब्रॉड जंप कराते हैं ना, जी सर, पहले बच्चों को बोले जंप करने के लिए, वो नॉर्मल तरीके से करेंगे, उनको नहीं आता। जब हम उनको स्किल्स या टेक्निक सिखा देंगे कि आपको स्प्रिंग का एक्शन कैसे करना है, तो वो जंप अपने आप ही कर सकते हैं अच्छी तरीके से। कि 45 डिग्री में जंप करना है और स्प्रिंग बॉडी को पूरा नीचे करके करना है, तो दे कैन जंप हायर और व्हाटएवर। ये जंप करते समय ये लाइनें भी गाते रहेंगे और साथ में जंप करते रहेंगे। लाइनें गा के तो नहीं जंप कर सकता कोई, जंप तो जंप करेगा, वो लाइन गा के नहीं जंप कर सकता कोई। लेकिन सर जंप करते हुए हर्डल्स भी बनाए जा सकते हैं, ताकि क्षमता जो है बच्चे के साथ, उसके मेंटल एज के साथ और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ उसको हम कोरिलेट कर पाए। एक्चुअली वो जैसे वो है, मतलब जो ब्रॉड जंप होता है ना, ब्रॉड जंप में काफी ये होता है, मतलब इसमें ना काफी स्किल्स की जरूरत है। जिसमें स्किल्स की जरूरत है वो सारे हो सकता है। जैसे ब्रॉड जंप करता है कोई एक दूसरे उसमें, इसमें स्किल्स की जरूरत है, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कर सकता है। जैसे लॉन्ग जंप होता है, ये होता है, तो उसमें जब आपको सीख जाते हो तो फिर उसके बाद कर सकते हो, पहले नहीं कर पाते इतने। बट पहले बहुत कम डिस्टेंस में होता है, बट वंस यू लर्न कि आपको बॉडी बेंड कर, जैसे ये बेंड करके कर रहा है, तो ज्यादा जंप कर सकता है। लेकिन सीधा करेंगे तो जंप नहीं कर सकते। तो वो हम कॉन्फिडेंस वाला दे सकते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस वाला सिखा सकते हैं कुछ। एक बच्चे को ट्राई करते हैं, जो रियल स्पोर्ट्समैन है वो लास्ट में जंप करेगा तो वो जंप कर जाएगा। लास्ट में नहीं, तो आइडिया है कि जैसे ये बॉडी को बेंड करके जंप कर रहे हैं ना, तो ये एक्चुअली स्किल आ गया। अगर सीधा खड़े होकर जंप करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही जंप होगा, बट बॉडी को बेंड करके जब हम जंप करते हैं, आगे की तरफ करते हैं, तो ये होगा। ये नहीं तो ये छोटे छोटे जंप हो गए, जैसे यहाँ पे हो रहा है। सुजीत सर, इसमें एक गेम वी वर प्लेइंग व्हेन वी वर इन द स्कूल टाइम ना, तो उसमें क्या था, 2 गर्ल्स एक रोप पकड़ती थी और धीरे धीरे हम हर्डल, वो जो लेवल था उसको इंक्रीज करते जाते थे सर। हम सोचते थे बस ये इजी है, फिर नेक्स्ट लेवल और एक अप होता था। तो वो भी एक अच्छा, मतलब इसके साथ कोऑर्डिनेट हो सकता है शायद, जिसमें रोप्स के साथ करते हैं सर। वो रोप्स को हमें पार करना होता है, वो रोप जंपिंग बोलते हैं। हाँ यस सर, रोप जंपिंग, यस सर।
तो उसमें भी ना धीरे धीरे जो लेवल ऑफ हर्डल वो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है सर। दो ये जैसे ये भी करते हैं मतलब ये तो हाँ समझ गया, मतलब वो बीच में धीरे धीरे करके ऊंचा करते रहते हैं। क्योंकि सर जैसे चिड़िया का इसमें जो उदाहरण दिया गया है इसमें बेसिक यही बताया गया है कि जो बच्चा है वो जब जिस स्टेज में होता है वो सोचता है कि मेरे आसपास जो अभी की चीजें हैं बस इतनी ही मेरे आसपास की दुनिया है ना, वो सोचता है बस इतनी ही दुनिया है। लेकिन जैसे वो और बड़ा होता है उसकी सोच और बढ़ती है, वो अपनी माँ के साथ वार्तालाप करता है तो उसे पता चलता है कि ये दुनिया सिर्फ इतनी ही नहीं है, शायद इससे थोड़ी सी और भी बड़ी है। इस तरीके की ग्रोथ को उसमें दिखाया गया है सर। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा बढ़ा के ये कर सकते हैं ना उसमें। ठीक है, तो अभी क्या क्या आइडियाज आए एक बार वो देखते हैं। If the children could be introduced to something new, which they have not ever come across. हाँ वो फर्स्ट टाइम मैं भी वही सोच रहा था। वो उस तरह क्या होना चाहिए, जैसे आपने रग्बी के लिए कहा था, या maybe something which they have not seen or they have only heard about it. A new game, yes. हाँ सर That वो would be very interesting to them. हाँ सर वो है जैसे ask Surya Prakash and Jagjit, you would be able to give something. 6th class के बच्चे जो है नया कोई चीज ऐसा हो, sports teacher may be able to give something new. हाँ उसमें सर लक्रोस करके गेम है, मतलब उसको जो फर्स्ट टाइम करने सर, लेकिन जो ब्रॉड जंप वगैरह वो स्किल्स वाले गेम्स है, मतलब ये स्किल्स वाले गेम्स है, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं है तो स्किल्स वाले, बट यही है कि मतलब कि ordinarily how they do it and then learning the skills, how they are able to improve their performance, that is what is more important. से परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट तो जैसे अगर स्किल सीख गए उसमें तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एग्जैक्टली इनिशियली दे डू विदाउट लर्निंग द स्किल्स। सर वही कर रहा हूं ना सर, सबसे इजी एग्जांपल है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ये सबसे इजी एग्जांपल है कि अगर आप किसी को पहले बोल देते हो ना जंप करने के लिए, वो सीधा खड़े खड़े करके जंप करता है, कुछ रिजल्ट नहीं आता है। जब उसको बोलते हैं बॉडी को बेंड करके आपको स्प्रिंग की तरह जंप करना, ऑटोमेटिकली वो 1.5 से 2 गुना हो जाता है उसका जो रिजल्ट है। It could be even learning new skills of high jump, जिसको आप क्या बोलते हैं उसको? सर हाई जंप तो बहुत डिफिकल्ट है सर। हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन लॉन्ग जंप सर लॉन्ग जंप के लिए वो चाहिए, लॉन्ग जंप के लिए सैंड पिट चाहिए, हाई जंप के लिए हाई जंप के लिए आपको मैट वगैरह सब चाहिए, ब्रॉड जंप के लिए कुछ नहीं चाहिए। यस सर लॉन्ग जंप यस। ये देखिए इसने जो किया बॉडी को बेंड करके किया, अगर वो बॉडी को बेंड नहीं करता, अब वो और अगर डायरेक्टली करता तो ये बॉडी को बेंड किया तो फिर वो कर पा रहा है, अदरवाइज होता ही नहीं है इसका। सर ये लॉन्ग जंप में सर ये भी रहेगा कि स्पोर्ट्स टीचर के कोऑर्डिनेशन के साथ हम ये एक्टिविटी एंड इसको कंबाइन कर सकते हैं सर, तो दोनों स्किल्स इसमें ये जो है ये बेसिकली स्टैंडिंग लॉन्ग जंप है, जिसके एक्चुअली अगर सैंड पिट नहीं भी है तभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल लॉन्ग जंप करें तो दूर से भाग के आने पड़ते हैं, तो उसमें आपको सैंड पिट चाहिए। हाई जंप तो इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि हाई जंप में आपको मैट चाहिए, बिना उसका हाई जंप कोई कर ही नहीं सकता। हाई जंप तो स्ट्रिक्टली नो है मतलब जब तक। सर चिड़िया को हम एसोसिएट कर सकते हैं शटल कॉक के साथ। यस मैम, क्या शटल कॉक के साथ क्या है? उसको एसोसिएट कर सकते हैं, चिड़िया जो वर्ड है, क्योंकि 7th का बच्चा है, उसको हम बता सकते हैं, वोकैबुलरी एनहांस होगी उसकी, और उसको हम सपोर्ट के साथ भी किसी एसोसिएट करते हुए नीले गगन की भी बात की है। जब बच्चा खेलेगा तो उसको नीला गगन भी दिख रहा है, और जो शटल कॉक है तो वो एक उससे दूसरे उसमें जा रही है नेट से, तो चिड़िया की जो एक्टिविटीज हैं तो उनके साथ भी हम इसको कोरिलेट करके बच्चे को समझा सकते हैं, एज पर माय ओपिनियन। सुजीत सर, shall I say something? Yes ma'am, please. सुजीत सर, ये एक गेम होता है जिसमें वो दीवार होती है और उसमें स्टेप बाय स्टेप बच्चों को चढ़ना होता है उस दीवार पे, वो उसमें पैर रखने की जगह बनी रहती है सर,
अच्छा वॉल क्लाइंबिंग की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, और उसमें क्या होता है कि जिस बच्चे में एक्चुअली स्ट्रेंथ होगी ना सर, वही ऊपर तक चढ़ पाता है। मैम लेकिन ये सारे स्कूलों में पॉसिबल नहीं है। सर नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर वॉल क्लाइंबिंग नहीं है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा ही हम एक गेम भी सोच सकते हैं जिसमें इट इज द मैटर ऑफ राइट स्ट्रेंथ। अब जब तक बच्चे में राइट स्ट्रेंथ नहीं होगी, जिसमें है वो तो आगे चढ़ेगा, जिसमें नहीं है वो पीछे ही रह जाएगा, और उसको और अपने आप को योगा या एक्सरसाइज के थ्रू उस स्ट्रेंथ को गेन करना पड़ेगा। अब ऐसे और कौन से गेम होते हैं सर जिसमें स्ट्रेंथ काम करती है? बस स्ट्रेंथ तो शीर्षासन कर लीजिए, उसमें प्रैक्टिस के बाद ही हो पाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ भी तो वो यही कह रही है ना सर। पैराग्राफ में देखिए, पहले पैराग्राफ में वो केवल वही घोंसले में आपस में बात कर रहा है, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा। दूसरे में उसकी और स्ट्रेंथ आई, उसने फूल पत्ती डालियों में फुदकने लगा। तीसरे में वो नीचे तक उतर के आ गया दाना चुनने। बट चौथे में जब उसके डैने बड़े हो गए और वो उसके विंग्स में स्ट्रेंथ आई, तभी वो फाइनली फ्लाई कर पाया। दिस इज द क्रक्स ऑफ द पोएम। मैम ये जैसे हेड स्टैंड होता है, हेड स्टैंड भी योगा के पोज होते हैं, लेकिन वो यस एवरीवन कैन नॉट डू। यस, प्रैक्टिस के बाद ही तो कर पाएंगे इसको। बिल्कुल सर। तो आप योगा का इसको भी ले सकते हैं सर, या कई सारे योगा होते हैं जो हर कोई नहीं कर पाता, धीरे धीरे सीखता है। तो इसमें जो विनर है या जो बच्चे कर पा रहे हैं वो एक तरफ हो गए, दे आर एबल टू फ्लाई लाइक दैट चिक, तो लाइक दैट बर्ड, तो वो उनमें वो स्ट्रेंथ है। सो द थिंग इज कि वही धीरे धीरे रे गुना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रोता है फल होए। एक्चुअली यही इस पोएम का क्रक्स है कि आप धीरे धीरे ही अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो एक दिन स्ट्रेंथ आएगी एंड यू विल बी एबल टू फ्लाई लाइक दैट बर्ड, यू विल बी एबल टू अचीव दिस इज। जैसे ये वाले हैं, ये वाले इट्स नॉट इजी टू डू फ्रॉम डे वन, बट थोड़े दिन के बाद पर आप वो योगा का कर सकते हैं सर। या हाउ मेनी टाइम्स स्किपिंग कैन बी डन सर? कितनी ज्यादा बार स्किपिंग कर सकता है कोई? Skipping is good. Skipping is also good because it has got new techniques. Skipping can be done. Yes. New this thing are also. Yes. So जिस बच्चे में starting with simple skipping and then they simple skipping. Yes. They can start with simple skipping. Yes. And the number of skips which they do, and yes. then you can go for different modulations which are possible in that. Yes. Timing also we can give timing sir. Timing के इतने मिनट जैसे इंक्रीज कर सकते हैं, पहले 1 मिनट में कितने लोग कर सके हैं, फिर 2 मिनट में आगे जितने इतने कैपेबल होंगे तो वी कैन इंक्रीज द टाइमिंग, जो लास्ट में ज्यादा टाइम तक वो कर पाएगा। तो सर ये एक ही मतलब स्लॉट में कंप्लीट होने वाला मतलब एक्टिविटी हो जाएगा। Yes, yes. और से यस बट स्किपिंग अलोंग विद द टाइमिंग सर, हमें ना टाइम को भी थोड़ा सा उसमें ना कि 1 मिनट तक कर रहे हैं, फिर 2 मिनट ऐसे करके हम जो ज्यादा स्ट्रेंथफुल बच्चा होगा, even the child can be asked that at home also he can practice. Yes, and yes, after yes, a week yes. change in his timing and all that. So बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके अंदर consistency भी आ जाएगी और he will repeat the things also. Yes sir. Yes sir. Yes sir. So habit formation for physical activity will also be formed. ये भी हो जाएगा। हाँ। और सर जो फ्लाई करने वाला जो मोटिव है ना, वो भी स्किपिंग में कहीं ना कहीं आता ही है, उड़ने आता ही है। हाँ बिल्कुल। And even sir, those who couldn't do that ना, जो highest number of skips नहीं कर पा रहा है, वो motivate भी होगा कि वो भी ऊपर कर पाए। Yes. हाँ, yes. Everybody will be motivated. और इसमें अगर जो पूजा, if you remember, we had done one pulse rate को measure करने के लिए भी हमने किया था। हाँ सर, हाँ। जो हमने कहा था कि let them do it for 15 days and let them measure their pulse rate before and after the exercise. I think it can be attached with this. सर even सर, जैसे पहले बार जब वो 50 बार कूद लेता है या 20 बार कूदता है, उसके पैरों में दर्द भी होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है ना, तो उसके मसल स्ट्रेंथ जब आती है तो पेन होना बंद हो जाता है। Yes, yes. तो ये वाली चीजें बच्चा खुद नोट कर सकता है। He can make a note of all this. हाँ, और इस पोएम का जो एक्चुअल वो निकलेगा, जिसको हम सारांश कहते हैं, वो खुद अपने वर्ड्स में लिख पाएगा सर।
हाँ, ये कि इसका जैसे फायदा जैसे एक ये उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ी, जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी तो वो अपने जो गोल को अब अचीव कर पा रहा है कि वो अंत में जाकर उड़ पा रहा है आसमान उड़ में। पा रहा है, वही उसका वही आसमान है कि वो इतने स्किप्स कर पाया। अब ये है कि दैट ये जो आप करा रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी, it needs to be clubbed with other subjects also, so that the child is able to do one activity and get the results in any other subjects also. Just like we could do it in science. साइंस के साथ भी we can coordinate sir. हम यस सर, हम पल्स उसकी नाप सकते हैं। हाँ बिल्कुल। All that can be done, and then you can record the data, draw graphs, make analysis, make comparisons. So this is what is basically the need of subjects, which are required. मैथ्स के साथ भी this can go by sir, कि बच्चे का डाटा बनाकर आप हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट वो भी निकाल सकते हैं मैथ्स के साथ भी। फिजिकल एजुकेशन टीचर को भी इसका फायदा होगा, because he can make a note of the progress of the child as he is moving from one stage to the other stage. उनको ग्रेड देने में भी आसानी होगी, सबको A+ देने की जरूरत नहीं। Absolutely interdisciplinary हो जाएगा सर। This is interdisciplinary, and one activity which can be done so that so many teachers are involved. So with their whenever their lesson is coming up, they can always correlate. When did you start this? How did you like it in the beginning? How do you feel now? So all that things can be correlated, and that is what is actually required. Yes, sir. Because for every lesson you cannot have a different activity. You can have a set of activities which can be taught for which can be useful for teaching the different topics and different subjects. सुजीत सर उसको लिख रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो आप बोलते हैं वो ऐसा नहीं जाता है। हाँ वो मैं एक्चुअली स्क्रीन दिख नहीं रहा था मुझे। हाँ नहीं वो ब्रह्मा जी हैं। चले जाते हैं। ब्रह्मा का कोई पूजा नहीं करता मैम। तो ये हिंदी वाला है सर, तो आप इसको ना मैं हिंदी में करवा दूं, लिखवा दूंगी। हाँ मैम, एक्चुअली वो लिख नहीं पाता ना मैं हिंदी में। आप कर लीजिए एंड देन आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसमें जाके अपने टीचर से बिल्कुल एक ही दिन में आपके ये सारे लेसन को हिंदी में कर दूंगी। लॉटरी खुल गई आपकी। नहीं आप तो बिल्कुल दे दीजिए, तुरंत ही करवा दूंगी मैं, एकदम टाइम ही नहीं ले। आई हैव अ वेरी वेरी गुड हिंदी टीचर, और वो बहुत इसमें टेक सेवी हैं, तो बहुत अच्छे से ये सब काम कर देते हैं। You induct him in this also. He will be interested. हाँ, you can ask him to join. सर हिंदी में किया जा सकता है कुछ, इसको कन्वर्ट करके हम पूरा टाइप करके से हिंदी में लिख सकते हैं। वो कोई बिल्कुल वो तो हम कर देंगे, है ना। ठीक है, तो ये ठीक है, इसको डेवलप कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वी विल गो इनटू नेक्स्ट वन। अभी हमने देखा था क्लास 7th, सो व्हिच वन शुड वी टेक? भारत एक खोज। सर कोर्स बी ले रहे हैं सर? अच्छा, भारत एक खोज, ओके। ये तो कोर्स बी का लेते हैं, और ये कोर्स बी क्लास 8 रुपिंदर सिंह। सर भारत एक खोज और रामायण महाभारत ये तो अतिरिक्त पठन के लिए हैं। आई थिंक कि मेन कोर्स में भी, क्योंकि हमारे स्कूल में ये अतिरिक्त पठन के लिए प्रयोग में की जाती हैं सर। ये मेन कोर्स में सर वसंत पुस्तक ही है सर, भाग 1, 2, 3 ऐसे ही। आई थिंक मुझे लगता है कि दूरबा का भी होगा, क्योंकि दूरबा का मुझे इतना आइडिया नहीं है सर। हाँ मैडम, बी कोर्स में है मैडम, दूरबा भाग 1, भाग 2, भाग 3। सर तो भारत एक खोज ग्रेड 8th के लिए है ना, आई थिंक सपोर्टिव फॉर रीडिंग फॉर, आई थिंक, और मेन कोर्स में है सर भारत एक खोज। जी मैम नमस्कार। भारत एक खोज मैम मेन कोर्स में है, और इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कुछ, इसमें से लगभग 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मैम। अच्छा सर, अच्छा सर, थैंक यू सर। रामायण और महाभारत का भी सेम स्टेटस है मैम। हाँ जी सर। तो एक भारत एक खोज को लेते हैं, मतलब ऐसे अलग अलग चीजें लेंगे तो हमारे पास थोड़ी वेराइटी हो जाएगा ना सबके, उसके लिए ये तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सबको थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर हो जाएगा। तो भारत एक खोज यहाँ पे मिल जाएगा ना सर, उसको लेते हैं, जो डिफिकल्ट है उसको लेते हैं। ये मैं कैसे देखूं भारत एक खोज?
भारत एक खोज मिल गया सर 8th में। हाँ जी, हाँ जी मिल गया। और इसमें भारत एक खोज तो बहुत बड़ा है वैसे भी, इसमें तो बहुत सारे सर ये बहुत बड़ी बुक है सर, ये कंप्लीट बुक है ये। हाँ और पूरी इसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी वाली है। नेहरू वाली है। अच्छा ये हमारी सरकार ने बंद नहीं कर दिया इस किताब को। नहीं हुआ सर। लेकिन खाना ना यहाँ क्या लेके आ रहे, वहाँ टेबल पे छान के लाओ। अच्छा सब लोग सर ये तो ये सर कैसे कैसे करेंगे, मतलब इसको आपको पता है इसके बारे में? इसके लिए तो सर ये है कि बीच बीच में से कुछ कुछ कंटेंट लेने पड़ेंगे सर, और इसमें रोल प्ले सबसे ज्यादा आता है। नहीं सर थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीजें आपको अगर पता है तो आप ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए, या तो मैं एक जिस्ट निकाल लेता हूँ। इसमें से कोई एक दो चैप्टर का ही तो देखना है, बट ये लेता हूँ जाता हूँ सर। यहाँ पे क्या करेंगे, वही बात है। साढ़े 4 वाले को कर लेता हूँ अतीत का दबाव किसी का ये जो बात नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई बात नहीं करेंगे तो अपने आप को ऑफ करें। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ऑफ रखें। ये चैप्टर 1 का है। यही देख लीजिए सर, इससे स्टार्ट कर लीजिए। राइट सर। ये तलाश भारत का अतीत और सर ये एक्चुअली इसको हमें करना है क्या? मैं वही सोचा, भारत एक खोज को करना है क्या चौहान सर? मतलब ये थोड़ा डिफिकल्टी होगा मेरे हिसाब से, भारत एक खोज को स्पोर्ट्स के थ्रू क्या करेंगे? We can probably do one thing that we can do कि we can move from one part of the country to another, but ये अगर कुछ है तो उसके हिसाब से कुछ ये कर सकते हैं। ये है उसके दुर्गों के बारे में, तो चैप्टर पे चैप्टर अगर देखें, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से स्टार्ट हुआ है सर ये सारा। राइट। प्रगति बनाम सुरक्षा, सिक्योरिटी, भारत के प्राचीन रंगमंच, संस्कृत भाषा की जीवंतन, और ये दक्षिण पूर्व एशिया को भारत। सुजीत सर। हाँ मैम। सर रामायण महाभारत और भारत एक खोज की जगह अगर हम हिंदी में ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को मतलब स्पोर्ट्स के माध्यम से कराएं तो उसमें थोड़ा बच्चों का और उत्साह और रुचि बढ़ पाएगी। ये मेरा एक सजेशन है। ये मुझे भी लग रहा है मैम। जी सर। हाँ आई थिंक सो। आई थिंक ये थोड़ा ये चीजें ठीक है, ये सब एग्जाम क्लियर करने के लिए ठीक है, पर इसमें यस सर। ये सर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर मेरे ख्याल में एसएसटी ऐसे सब्जेक्ट के साथ ये कोरिलेट अच्छा हो पाएगा। ये एक्चुअली ये एसएसटी के साथ बहुत अच्छा है, ये इसका कोरिलेशन एसएसटी के साथ बहुत अच्छा जाएगा सर। इसको एसएसटी के साथ आपको अगर करना है तो कर सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है कौन से चैप्टर के साथ किसका किसके साथ लिंकेज करना है, वो तो आप कर सकते हैं। जैसे 1857 के बारे में है, बहुत सारे इंसिडेंट्स है जिसमें हम स्पोर्ट्स को ले रखा है हमने, कुछ कुछ तो 1857 के इंसिडेंट के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं, हमने रखा हुआ इसमें। कांग्रेस वैसे देख लेते हैं, बट आई थिंक मैडम का सुझाव अच्छा है कि अगर इसको ग्रामर के हिसाब से करें तो इसको एसएसटी के साथ तो बहुत अच्छा, मतलब एसएसटी के साथ तो ये परफेक्ट है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। एसएसटी क्या है? एसएसटी मतलब इसमें हिस्ट्री भी हो जाएगा, ज्योग्राफी भी हो जाएगा, सिविक्स भी हो जाएगा, तीनों चीजें हो जाएंगी इसमें।
इसमें एसएसटी के साथ लिंकेज तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आप कर भी सकते हैं अगर करना है तो, क्योंकि सर मैं एक बात बोलूं सर। यस मैम। सर वी कैन हैव अ ट्रेजर हंट इसमें, और उसका सीक्वेंस बनाए कि प्री हिस्टोरिक टाइम से, मतलब अर्ली एजेस से लेकर और लेटर एजेस तक का उन पे 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स डालें, और बच्चों से बोलें भी कि दे कैन इवन हैव अ फैंसी ड्रेस अलोंग विद दिस, or maybe a stage play of some kind other than the physical activity. मैम एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है ट्रेजर हंट में, वही सोचा तो ऑल ओवर इंडिया को अगर हम मैप कर लेते हैं, मतलब इसमें 2 3 4 थीम्स बना सकते हैं। एक थीम है जो टाइम पीरियड के हिसाब से हो सकता है। वन कुड बी अराउंड कल्चर, वन कुड बी अराउंड लेट्स से इस पे हेरिटेज के ऊपर है, मतलब इसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स अभी दे रखा है इसमें, each of them can be a treasure hunt actually. And they can also include the treasure hunt with the fancy dress that they can wear, dresses of the various states, if they can manage. If they can, otherwise जैसे दुर्गों की दौर है, so you can move from Maharashtra to Rajasthan to wherever, I mean different parts of the country, मतलब ये जो references इसमें हैं उन सब पे वो कर सकते हैं। और सर बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है जब ये फैंसी ड्रेस के लिए तैयार होंगे और या एक्टिविटी के लिए तैयार होंगे, तो दे विल बी मोर एंथुसियास्टिक अबाउट दिस एक्टिविटी आल्सो। मतलब इसमें अगर जैसे दक्षिण भारत दे रखा है शांतिपूर्ण विकास युद्ध के तरीके, मतलब इसमें एक्चुअली वो दे रखा है जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है, इसको लेके फिर वो थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, जैसे युगों का, और मतलब दिस इज अबाउट फ्रॉम गुप्ता एम्पायर टू ये सारे डिफरेंट एजेस और डिफरेंट किंगडम्स और डिफरेंट ये के जो नेविगेशन है, तो ये वही जो ज्योग्राफी की बात करेंगे, ज्योग्राफी के टाइम पे ही इसको अगर लिंक करेंगे हिंदी के भारत एक खोज के साथ, उसके चैप्टर ज्योग्राफी में तो सर ये है ही नहीं कहीं पर भी 6th 7th 8th में। कैसे सर कि ये तो या तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, और नहीं तो कहीं कहीं के ऊपर ये रीजनल ज्योग्राफी है, बस वो भी हायर 8th क्लास में है। एक टॉपिक है गंगा प्लेन का, तो इससे पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी, फिर क्लास भी तो क्लैश करेगी कि इस तरह के टॉपिक्स हो सकता है कि जो अभी जिस क्लास के साथ में ये डिस्कस कर रहे हैं वो दूसरी क्लास में ना हो, उसी क्लास में ना हो ज्योग्राफी में, ऐसे भी तो हो सकता है ना सर। हाँ हो सकता है, हो सकता तो है दूसरी क्लास में। क्यों ना हम इसको एक्सक्लूसिवली हिंदी का ही रखें फिर। मैम एक्चुअली इसको अगर चाहे तो आप इसमें कोई भी, जब भी हम लिंकेजेस बनाते हैं ना, आप लिंकेज को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, इसमें हमारे पास वो है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी सब्जेक्ट को किसी के साथ आप लिंक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन लिंक एनीथिंग विद एनीथिंग, अगर आपको लगता है तो ये हम इसको पिकअप करके इसको आगे इसमें कर सकते हैं। सर ट्रेजर हंट के जैसे गेम कर सकते हैं, वो अच्छा भी लगेगा, बच्चों को एंजॉय भी करेंगे उसको खेलना, और सीक्वेंस में करेंगे सर। एक एक्टिविटी, काफी बड़ी किताब है ये तो, पहले मे बी उनके एक्चुअली मैम एक्चुअली ये जो टीवी में आता था ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, हाँ, जिसमें वो जो क्या सेट है वो आता था ना, उसमें ही वाज ओमपुरी सर, ओमपुरी वाज लीडिंग दैट शो सर, भारत एक खोज, या रोशन सेट है सर, और जो भी हो उसमें भी एक्चुअली वही था ट्रेजर हंट के तरह, इट वाज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ना, जो अगर हम उसको विजुअलाइज करें ना, वो टीवी में अगर प्रोडक्शन भी कैसे होता है, वो एक्चुअली ईस्ट इंडिया से वेस्ट में चले गए, फिर वहां से उसमें चले गए, सो यू आर एक्चुअली नेविगेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, so we can actually do treasure hunt actually how quickly can one do a job, आपको पूरा इंडिया का सब कुछ कवर करना है, कौन सी सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक वी कैन एक्चुअली डू इट दैट वे, मतलब सबको अगर हम अलग अलग थीम्स दे देते हैं, अगर एक सिंगल डे में करना है या 2 दिन में करना है, तो ये भी कर सकते हैं कि मतलब अलग अलग डेज में ही करना है अगर इसको, so we can actually have 9 different themes, so treasure hunt के themes हैं, and वो उसको ढूंढ के पढ़ेंगे, but वो सारी चीज को हम ग्राउंड में कैसे कराएंगे, वही वाली बात है। हाँ, वो तो ग्राउंड में ही जाकर करना पड़ेगा सर, तभी एंजॉय भी करेंगे बच्चे इसको। So we'll have to do it as 9 different treasure hunts, मतलब ये करके। हाँ, because 9 chapters and 9 different treasure hunts.
Actually, Discovery of India is also hunting. No, you are discovering. Yes, yes, sir. So it's a discovery game. Actually, you keep It's a discovering. discovery game. So, मतलब खोजना है ना, हम treasure hunt is all खोजना. So we can have theme of treasure hunt. तो इसको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा. मैं हर चैप्टर को पढ़ गया. इंग्लिश का होगा तो मैं जल्दी से डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर इंग्लिश वाला वर्जन है तो देख सकता हूँ. थोड़ा अप्लाई कर दो ना, अपने को पोस्टर भेजेगा उस पे जाके रजिस्ट्रेशन करने होगा. ये ओपन करो, ये ओपन करे तो कोविड-19 से कुछ पोस्टर्स हमको फ्री में भेजेगा. अच्छा. नेट पे मार दो धंधा. तो ये बुक अगर है मैम, इंग्लिश वाला तो मुझे है नहीं, बट ये अगर मिल जाए कहीं पे, हिंदी वाले में भी जो भी है आप मार्क कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं इसमें. ये अभी कितने बड़ा वो किताब है पता नहीं. ये है इसमें जो ये आई थिंक चैप्टर वाइज ही दे रखा है. ये ऐसे जैसे ये कितने चैप्टर से देख लेते, सेम है कि नहीं है. वी कैन चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 10. ये चैप्टर 10, ये वही है, कवर्ड है, 10 चैप्टर्स है. तो ये सारे एस्पेक्ट्स दे रखा है. आई थिंक द टेबल ऑफ कंटेंट इज व्हाट वी एक्चुअली नीड. सेम ही है सर, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन. हेलो जी सर, सेम ही है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही उसका बुक का कंप्लीट. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ. तो ये सेम है इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन है, बट वो एक्चुअली इसके जो एस्पेक्ट्स है उसको अगर हम डिस्कवर कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड तो देन वी कैन डू. तो ये थोड़ा सा बहुत क्रिएटिव काम है एक्चुअली. इसके लिए प्रॉपर डिटेलिंग है कि विच इज द प्लेस, मतलब उसमें ऐसे होना चाहिए विच इज द प्लेस वेयर दिस इज द प्लेस वेयर, मतलब ऐसे करके कुछ क्वेश्चन हो जहाँ पे where did the Aryans come from. तो फिर कहीं पे तो हिंट्स रहेंगे, सब में हिंट होगा, वो नेक्स्ट में जाना है उसको. जी. तो सर आप बताइए कैसे ये हो सकता है, मतलब अगर आपको कोई सीक्वेंस पता है तो सीक्वेंशियली हो सकता है. ये जैसे डेट्स के सीक्वेंस है, ये तो डेट्स के सीक्वेंस का एक बनाया है एक ट्रेजर हंट. मतलब उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स ही पिक कर सकते हैं, जैसे ये वेदास के ऊपर है. वेदास उपनिषद कैसे बनाए, कोई और कुछ आइडियाज बताएं. मत टाइमलाइन पे किया जा सकता है इसको. टाइमलाइन है क्या है, दूसरा ये भी है जो एम्पायर्स है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया जो अलग अलग एम्पायर्स. वो अलग अलग एम्पायर्स जो है वो प्लेस पिक कर सकते हैं. हाँ, प्लेस के साथ है, कल्चर के हिसाब से हो सकता है, डांस फॉर्म्स के हिसाब से हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि इसमें क्या क्या सीक्वेंस है चैप्टर्स में. वो तो थीम्स. सुजीत सर, यस मैम. इसमें मुझे इतना अब इस बुक में अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करके और एसएसटी के साथ कोरिलेट करके देख लें कि कौन सा हम एसएसटी के साथ जोड़कर कर चुके हैं, जो बचे वाले हैं उनको हम वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि एसएसटी का काफी मुझे लगता है हो गया होगा लेसन प्लानिंग. तो उनके साथ हम इनको ऐसे करके जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको आगे हम देख सकते हैं. ऐसे भी कर सकते हैं सर. हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं.
वो देखना पड़ेगा क्या क्या है। अगर कुछ एसएसटी के साथ है तो ओवरलैप को तो वो लिंकेज हो जाएगा ना, वो एक्टिविटी एसएसटी में कवर्ड है, उसको लिंक ही तो करना है यहाँ पे। वो तो एक्टिविटी ऑलरेडी बना हुआ है, उसको लिंक करने में तो 2 मिनट का काम है। यस सर, यस सर। ठीक है, वो तो कोई टाइम टेकिंग काम है नहीं। ठीक है, और ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाले में जाते हैं। आई थिंक इंस्टेड ऑफ क्लियरली अभी हम जाते हैं उसमें। अभी एक और महाभारत रामायण का देखना है कि कैसे करना है, कि क्लास 8 का टेक्स्ट बुक को देखें, कोर्स है, एक सैंपल देख लें। कोर्स 8 देख लेते हैं सर, क्लास 8 का। सर अगर ग्रामर का किसी टॉपिक पे नहीं हुआ है तो हम किसी ग्रामर के टॉपिक पे भी डिस्कस कर सकते हैं सर, वो शायद नया रहेगा सबके लिए। ग्रामर का कुछ ये है, कहाँ से संक्षिप्त कहाँ पे है मैम? ग्रामर करके कहाँ है? मेरे ऐसे जनरली आप बोल रहे हो, होलिस्टिकली बोल रहे हैं ग्रामर का? आप सर बताइए। 6th 7th 8th में अच्छा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके सर, अरे हिंदी ऐसे ग्रामर। ग्रामर करके कुछ ऐसे कुछ टेक्स्ट बुक्स नहीं है ना सेपरेटली कि हम उसको, मुझे पता नहीं इसमें क्या है। सर ग्रामर के लिए अगर मैं और मेरा व्याकरण है ना सर, सरस्वती हाउस की है सर, वो जनरली कॉमनली ज्यादातर प्रयोग में की जाती है सर, ज्यादातर स्कूल्स में ना, मैं और मेरा व्याकरण, सरस्वती हाउस। बट ये यहाँ पे अच्छा, मैम ये मिलेगा नहीं ना, मतलब वो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। कोई नहीं सर, पुस्तक ले लेते हैं सर, वसंत पुस्तक कक्षा 8 का ले लेते हैं सर, इसको बाद में देख लें। हाँ सर, ये वसंत ले लीजिए सर, टाइम वेस्ट। हाँ वो लेते हैं। क्लास 8 ना? यस सर। वसंत भाग 3 सर जी। हाँ सर, क्लिक कर दिया मैंने। कौन सा वाला? सॉरी, कौन सा वाला लेना है बताइए। सर इसमें एक पार्ट है पानी की कहानी सर, उसमें जल की बात हो रही है, वो भी थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है। पानी की कहानी, ये क्लिक कर लो, पानी की कहानी। ठीक है, इसको चैप्टर तक देखिएगा। सॉरी, ये लेते हैं कामचोर देखिए सर, इसमें चैप्टर 10। सर। ये ले लिया मैंने, पानी की कहानी। पानी की कहानी ले लिया, ठीक है। ये अगर सबको पता है तो आप एक बार बता दीजिए इसके बारे में, या तो स्टोरी मैम अगर आप सबको बता देंगे। यस सर, मैं बताती हूँ।
सर इसमें इस कहानी के जो अंतर्गत, पानी की जो कहानी है, इसके अंतर्गत लेखक है वो ये एक्चुअली जो जीवन मूल्य है संघर्ष करना, और इसमें ना इसका मानवीयकरण किया गया, मानव की विभिन्न अवस्थाओं के साथ इसकी तुलना की गई कि पानी किस प्रकार से किस किस रूपों में कैसे कैसे आगे हमारे समक्ष आया है, किन किन परिस्थितियों में आया है, कैसे वो एक बूंद के रूप में आया, चाहे वो नदी है, चाहे बादल के रूप में है, या सर प्लीज म्यूट। हाँ यस मैम बताइए। हाँ जी सर। तो इसमें एक तरीके से बूंद पानी, जो पानी है उसको विभिन्न रूपों में दर्शाकर वो कैसे कैसे निकलता है सर, कि उससे लेखक ने हमारे जीवन के साथ उसकी तुलना की है, उसको पानी का जो है वो मानवीकरण कर दिया गया है, मानव के साथ तुलना करते हुए उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया है कि कैसे कैसे वो हर परिस्थिति में उससे लड़कर आगे सिर्फ अपने जीवन में अग्रसर होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, किन किन विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का वो सामना करते हुए भी अपने जीवन में बढ़ता जाता है सर। मैम ये क्या स्टेट्स ऑफ मैटर है क्या, जैसे सॉलिड होता है, ये होता है उसके ऊपर पानी जो है, जो अलग अलग स्टेट को तो कैसे फ्रीज, मतलब अलग अलग, इसका एक्चुअली उसका स्टोरी का वो क्या है, मतलब जिस्ट क्या है? सर यही है कि जो पानी है वो विभिन्न अवस्थाओं में कैसे आगे बढ़ता है, मतलब कैसे अपनी कहेंगे अपनी यात्रा को कैसे बढ़ता है। अगर वो आसमान से अगर वर्षा हुई है तो एक नदी में बहता है, फिर नदी आगे बढ़ती है तो समुद्र में मिल जाती है, एक वर्षा में किस रूप में आता है, एक बूंद के रूप में आता है, वाटर साइकिल इनडायरेक्टली। यस ये भी कर सकते, वाटर साइकिल है, इसको भी दर्शा सकते हैं सर इसमें। मैम ये तो बहुत अच्छा ही है, एक्चुअली हम सोशल साइंस के जो चैप्टर है उसके साथ लिंक कर देते हैं और स्पोर्ट्स के साथ भी लिंक कर देते हैं। ये एक्चुअली हाँ एक्चुअली हम जैसे अभी हमने एक वो बनाया था ना, मतलब काफी तरीके से, जैसे एज एन एग्जांपल हमने वो स्टोरी बनाया था जो मोशन ऑफ द अर्थ भी बनाया था, एक स्टोरी बनाया था जिसमें बेसबॉल वाला फील्ड है वो। अच्छा सर। मतलब इक्विनॉक्स से सॉल्स्टिस, फिर वो उसका इक्विनॉक्स और ये करके आता है, वो घूम करके ना बेसबॉल की तरह करता है। सो विच इज बेसिकली वो वापस आ जाता है, जो स्टेट ऑफ मैटर जो है एक वो है, मतलब आप एक एंड से फिर वो अलग अलग स्टेट में जाता है। इवन सन का भी तो स्टेट चेंज होता है, मतलब जैसे हमने एक बनाया था मैम, जैसे मैं ये बंद करता हूँ सुजीत सर, लेकिन वो तो क्लास 7 के अंदर है मैम, उसका एडेप्टेशन तो हो सकता है ना मैम। हाँ, वो वाटर साइकिल और वाटर के बारे में क्लास 7 ज्योग्राफी में है सर। हाँ व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसकी मतलब उसकी जो है साइक्लिक मैटर को करने के लिए अलग अलग तरीके से हम इसको ये कर सकते हैं, मतलब कि गेम्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हमने इसका किया था, क्या होता था, मोशन ऑफ द अर्थ, इसमें हमने एक गेम बनाया था बेसबॉल विद अर्थ, बेसबॉल वाला गेम है, मतलब कि वो यहाँ से इक्विनॉक्स से समर सॉल्स्टिस, फिर इक्विनॉक्स और विंटर से, ये हमने किया था कि वो एक पूरा घूम के ही लौट के आते हैं, उसमें सीजन भी चेंज होता है। जी सर। तो ठीक है, सीजन चेंज का इन अ सिमिलर वे वी कैन थिंक अबाउट ये स्टेट, जिसमें वो स्टेट चेंज होता है उसमें। सो चेंज ऑफ ये, सो वी कैन एक्चुअली डू दैट, मतलब क्योंकि हम एक ये जो फील्ड है 400 मीटर का ट्रैक में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक सर्कुलर, मतलब ये तो साइकिल है, कोई भी साइकिल दिखाने के लिए वी कैन एक्चुअली डू इट इन दैट। हमने वो भी किया था, हमने साइकिल के लिए हमने एक उसका भी बना था, रॉक का स्ट्रक्चर के लिए भी। स्ट्रक्चर, यस सर, रॉक स्ट्रक्चर का बनाने, रॉक साइकिल का था सर। हाँ रॉक साइकिल का भी हमने एक बनाया था, मैं अभी सबको दिखाता हूँ, ये वाला है सर, वो भी क्लास 7 का है। हाँ हाँ, ये लैंडफॉर्म्स की मैम, ये लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। वी कैन क्रिएट अ सिमिलर गेम जिसमें ऑब्स्टेकल कोर्स है, सर्कुलर ऑब्स्टेकल कोर्स है। इसमें बेसिकली इसमें क्या होता है, मैम अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं एक बार एक्सप्लेन कर लीजिए, सो दैट आई कैन आल्सो टेक अ मिनट।
सर इसमें ये था कि रॉक साइकिल को समझाने के लिए कि द फर्स्ट रॉक टू बी फॉर्म्ड ऑन द अर्थ ऑन द सरफेस इज द इग्नियस रॉक। सो मैग्मा से बच्चा जो है वो स्ट्रेट इग्नियस रॉक पे पहुंचेगा। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मेशन। फिर इसके बाद में इग्नियस रॉक व्हेन ब्रेक्स मतलब इंटीग्रेट होगी, एक बच्चे के बाद में 3 4 5 बच्चे आ सकते हैं, वो सेडिमेंट्स बन जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। व्हेन दे गो डीपर इनसाइड मतलब और नीचे उतरेंगे वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड लाइक दिस यू नो द सेडिमेंट्स स्टार्ट टू अक्यूमुलेट एंड फाइनली मैग्मा में फिर वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस वे यू कैन कंप्लीट द होल सर्कल एंड अगेन रिपीट द सेम। इसमें सर इजीएस्ट रॉक टू बी फॉर्म्ड आर द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स के अंदर तो 1 लेगेड स्ट्रेट रन करना है, फिर 2 लेगेड प्लेस के अंदर, फिर 3 लेगेड विल बी द मेटामॉर्फिक, ऐसे करना है। हाँ मैम, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ऐसे ही होता है, मतलब वाटर के साथ भी ऐसे ही होता है। यस सर। धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है, फिर उसके बाद वो गैस बन जाता है, मतलब ऊपर चले जाता है, फिर उसके बाद सॉलिडिफाई, फिर उसके बाद क्लाउड बनता है, फिर लिक्विड बनता है, फिर नीचे गिर के आता है। सो हियर वी हैड डन कि वो धीरे धीरे कंप्रेस कैसे होता है। तो हमने बनाया कि एक एरिया है, एक एरिया में इग्नियस वाला एरिया है, यहाँ पे बच्चे सिंगल लेग से भागते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट में पहुंचेंगे तो 2 लेग्ड हो जाते हैं, यहाँ जाएंगे तो 3 लेग्ड हो जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो 4 लेग्ड हो जाएंगे। जितना होते रहेंगे वो चौक होते रहेंगे और एरिया भी कम होता रहेगा, तो बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर उसके बाद वो फाइनली यहाँ पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा जब गर्मी हो जाता है, साइड सब टाइट होंगे तो सब अपना वो निकाल लेंगे, क्या कहते हैं, अपना जो हाँ तो सर ऐसे ही जो लास्ट में जैसे अगर पानी है तो वो क्या हो जाता है, जलवाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है और वायुमंडल को छोड़ देता है, तो वो इस हाँ we can actually create a similar game like this, okay, which is basically which actually depicts that yeah. Okay. तो हम देख रहे हैं उसमें घूम फिर के हमारा ये 8th में कर रहे थे ना मैम? यस सर 8th में पानी की कहानी है ना? यस सर पार्ट 16। तो इसमें भी मैम वैसे ही हम कर सकते हैं इसको। एडेप्टेशन जो है, या तो उसके डिस्क्रिप्शन को चेंज कर देंगे, या तो ये एडेप्टेशन चेंज हो जाएगा, गेम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे तो ये वाला गेम बन जाएगा। तो इसका जो 4 स्टेट्स होता है पानी का, तो वी कैन एक्चुअली शो दोस 4 स्टेट्स। जी सर। ठीक है, तो उसमें ये वाला हमारा उसमें भी हो जाएगा, जो वाटर साइकिल भी होता है सोशल स्टडीज में। यस सर। हो जाएगा इसके साथ ये दोनों। यस मैम। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम, बताइए मैम। सर मेरा एक कंफ्यूजन है काइंडली। जो हमारा कंटेंट है ना, तो उस कंटेंट को हमने स्पोर्ट्स के साथ इंटीग्रेट करना है या मल्टीडिसिप्लिनरी होकर चलना है? मैम एक्चुअली स्पोर्ट्स के साथ करना है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे सिमिलर चैप्टर भी है, जैसे सोशल, इसमें भी, ज्योग्राफी में भी एक सिमिलर चैप्टर है, साइंस में भी है, विच इज ऑल अबाउट वाटर साइकिल। अब मैं जब वाटर साइकिल हम एक एक्टिविटी बनाएंगे तो सेम एक्टिविटी इसमें भी यूज हो जाएगा, उसमें भी यूज हो जाएगा। वो वाली बात कर रहे हैं ना, मतलब एक एक्टिविटी बनाता है जिसमें वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल तो वाटर साइकिल है, मतलब वो हिंदी में पढ़ रहे हैं कि उसमें सोशल साइंस में पढ़ रहे हैं कि साइंस में पढ़ रहे हैं, बात तो वही हो गया ना। मतलब साइंस में हम उसको पढ़ेंगे चेंज ऑफ मैटर या चेंज ऑफ स्टेट। तो ये ऑलरेडी पार्ट में, जो पुस्तक में जो ये पार्ट दिया गया वो ऑलरेडी मतलब इंटरडिसिप्लिनरी जो हमारी एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही है। तो क्या तो नहीं, मैं वही मैम को अभी, मैम जो पूछ रही थी, मैं ये कह रहा था, जब हम कोई एक्टिविटी बनाते हैं मैम, एक्टिविटी पहले बनाते हैं, फिर उसको अलग अलग चैप्टर के साथ जोड़ देते हैं। मैं आपको ये जैसे शक्ति, अच्छा इट्स नॉट देयर। तो मैम जब मैं इसमें कोई एक्टिविटी को जोड़ता हूँ, एक्टिविटी जो मैं पहले बना देता हूँ, अगर वो वाला एक्टिविटी बना हुआ है, एज एन एग्जांपल, जैसे मैं ये एक एक्टिविटी बनाता हूँ, इसका नाम हमने ये रख दिया है, इसका नाम, इस गेम का नाम रखते हैं सर्कुलर ऑब्स्टेकल रेस, हम इसका नाम रख देते हैं।
नाम है सर्कुलर ऑब्स्टिकल रेस है। इसका लर्निंग आउटकम है टू लर्न अबाउट फिर मैं इसको गेम बना देता हूँ। ये करता हूँ। when I'm making ये this particular thing, this lesson, मैं अगर इसको modify कर देता हूँ, अभी मैं इसको 4 सीजन के बारे में, अगर हमें इसमें 4 स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं ना मैम, इसका 4 स्टेट्स है क्या, मतलब जो वाटर का? सर जैसे इसमें बताया गया है कि जो पानी की जो प्रथम बूंद है वो कैसे वायुमंडल में या किस प्रकार से आती है। तो जैसे पहले बूंद गिरती है तो वर्षा के रूप में वो नीचे आती है, फिर वो बूंद पहाड़ियों और चोटियों पर कर बर्फ में जम जाती है। तो वही स्टेज ही उसके बताए गए हैं। और अंत में जैसे वो है हिमखंड भी, जो हमारे क्या कहते हैं हिमखंड है, वो टूटकर पानी में मिल जाते हैं, नदी के रूप में आ जाते हैं। फिर अंत में जाकर वो कहाँ है, वो सागर में जाकर मिल जाती है ना, सागर की तलहटी, यानी वहां पर उसमें तलहटी में उसके बेस में जाकर वो उस तरीके से बताया गया। So we can actually say from cloud to mountain, मतलब अगर हम इसको चेंज करते हैं, क्लाउड से माउंटेन से रिवर,
रिवर और से दोबारा से सर, दोबारा से उसकी वही स्थिति है जब वो जलवाष्प के रूप में उड़कर दोबारा वही से वही वही हो गया ना। हाँ मैं इसको अगर चेंज करता हूँ, मैं इसको अगर पूरी चीज को चेंज करता हूँ, रिवर हो गया, रिवर के बाद वो हो गया, रिवर के बाद फिर ओशन हो गया, लेट्स से, राइट। यस सर, यस। बाकी उसके बाद तो फिर ये से और इसमें सर जैसे ये यात्रा कर रहा है, जिसमें जल की जो ये पानी की जो यात्रा है, इसमें ये भी दर्शाया कि जब भी वो जिस भी स्थिति में वो गुजरता है तो उसका डटकर, हर परिस्थिति का वो डटकर सामना करता है, और जैसा उसे ढलना चाहे वो वैसे ढल जाता है। मैम वो वही तो हो रहा है एक्चुअली। अगर हम ये गेम की भी बात करेंगे तो गेम का जी भी सर, जी सर, गेम भी तो एग्जैक्टली वही है, फ्रॉम क्लाउड टू माउंटेन, जी सर, माउंटेन से रिवर। जैसे जैसे आता है वो धीरे धीरे उसका डिफिकल्टी हो जाता है, बट वो चले ही जाता है ना। मतलब घूम फिर के गेम वही है। मतलब हम उसका डायग्राम चीज अगर मेंटेन करके रखते हैं, एबीसीडी करके रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वही हो गया। जी सर। ये करके बेसिकली हम करेंगे इन द फर्स्ट एरिया जब वो क्लाउड होकर रहता है तो। जी सर। यही हो गया, राइट। जी सर।
Right. So, so it's basically about ये वाला है, राइट? ठीक है सर. वेरिएशन हो गया. वेरिएशन वाला जो गेम है, इट्स अबाउट दिस वन, नो? इसके माध्यम से वेरिएशन भी हो गया और इंटरडिसिप्लिन जो हम बात कर रहे थे वो भी हो गया. वो दोनों ही चीज इससे राइट. तो इसमें कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तो खाली चॉक पाउडर फॉर. यस. हाँ हाँ. इसमें वो हो गया ना, मतलब कि ये करके. ठीक है. जी सर. ये मैंने ये कर दिया इसको. तो ठीक है. तो ये मैंने अभी सिंपल सा बनाया जिसमें सारी चीजें, राइट. अब मैं इसको ठीक है कर सर. दूंगा सेव. अब मैंने एक्टिविटी को पहले सेव कर देता हूँ. एक्टिविटी. अच्छा, इसमें एक इमेज चाहिए. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट क्विकली क्रिएट द इमेज. गिव मी अ मिनट. पहले ये कर देता हूँ, उसके बाद वो तो हो जाएगा 5 मिनट. दो इमेज बनाऊंगा, एक इसके लिए. बना दिया. तो मैं दूसरा बना देता हूँ. तो ये क्लाउड से स्टार्ट करेंगे. ठीक है सर. क्लाउड, फिर उसके बाद हो गया ड्रॉ.
No raindrop, yes. इसका ये माउंटेन है ना, सॉरी। माउंटेन, यस। माउंटेन हो गया, फिर उसके बाद हो गया रिवर हो गया। तो ओशन हो गया। सर माउंटेन्स की यहाँ पर आई थिंक इन फॉर्म ऑफ आइस ना, बर्फ के रूप में आ जाता है। जैसे वो माउंटेन्स में गिरा तो यहाँ पे आइस बन जाता है वो माउंटेन्स, फिर वो आइस पिघल कर रिवर बन जाती है, फिर अंत में जो रिवर का पानी है वो ओशन में मिल जाता है। यही तो हुआ ना मैम, नहीं? ठीक रिवर है। हो गया। अरे अब इसको ये भी कर सकते हैं, इसको बढ़ाना है, बढ़ा तो सही, बढ़ाने के लिए तो बढ़ा ही सकते हैं, इन द सेंस की। नहीं ठीक है सर, ये 4 ना हमारे फिर से वापस आ गया ना सेम चीज। यस सर, यस 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 सर, हाँ यस सर, सेम चीज है, मतलब इट्स सेम ये। तो वी आर बैक टू जहाँ पे था, वहीं पे आ गया। यस सर, वहीं पे आ गया ना। सो दे कैन जॉइन बैक। वाटर साइकिल हो गया, ठीक है। ये मेरा वो बन गया। अब मैं इसको, अब मैंने पिक्चर बना दी है, अब मैं इसको वो कर देता हूँ। बस पिक्चर लगाना है वाटर। ये वाटर साइकिल, ठीक है। ये एक्टिविटी जुड़ गया अभी। ये मेरा yes, एक्टिविटी बन गया। ये मैंने एक एक्टिविटी जी बन सर। गया। शक्ति, यस सर। ये मैं ये कैसे करूँगा, मतलब चैप्टर्स के साथ जोड़ूंगा कैसे? ये तो पता ही नहीं चल पाएगा। सर इसको एडमिन पे जाकर नहीं नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा सर। नहीं नहीं वो ठीक है। चलो अभी एडमिन का बताओ मुझे जरा। /admin login। कैसे? सर सिर्फ /admin/login आपने .spx लिख लिया। हाँ अच्छा अच्छा। मैम इसको मैं शक्ति ये सबको देना पड़ेगा फंक्शनलिटी, सो दैट वो बाय। मैम ये जैसे मैंने एक्टिविटी इसको किया, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। जी सर। ये मैंने सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं इसको जैसे लिंक करूंगा, मैं किसी के साथ भी लिंक कर सकता हूँ। सेम एक्टिविटी मैं 2 जगह पे लिंक कर सकता हूँ। अगर किसी को जैसे हिंदी में पानी की कहानी, मैं अभी अभी जस्ट क्योंकि मैं उसमें काम कर रहा था तो ये जुड़ गया इधर, ठीक है। जुड़ा हुआ है। अगर मुझे उसके साथ जोड़ना है, सोशल साइंस के किसी के साथ जोड़ना है, अभी हम उसका कर रहे थे। कौन सा वाला था अभी? अगर साइंस में सर कोई ऐसा हाँ देख लेते कोई... हैं कौन सा, देख लेते हैं अभी देखते हैं। इवन सर किसी और ग्रेड के साथ भी साइंस के किसी कॉन्सेप्ट के साथ जा सकते हैं, तो पर भी वी कैन बिल्कुल जा सकते हैं। अभी अभी वो कर लेते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल साइंस में है, देखते हैं वाटर का कुछ है क्या, वाटर साइकिल का। तो वहां पर भी यस सर। चेंजेस अराउंड अस, मोशन, लाइट, शैडो, नहीं इसमें नहीं है। 7 के साइंस में नहीं। वाटर साइकिल में भी आई थिंक मुझे लगता है ये तो नहीं है। वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, नहीं नहीं सर। वेदर में होगा मैम, वेदर तो उसी से होता है। ये है ना वाटर साइकिल।
Water. देख लेते हैं, अगर इसमें है तो इसमें जुड़ जाएगा वो। सर 8th क्लास में ही पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर लास्ट चैप्टर देखिए। अच्छा अच्छा, सेम स्टैंडर्ड में देखिए ना, अच्छा रहेगा। नहीं सर, एक्चुअली कोई सी भी मतलब एक्टिविटी से सर वो तो मल्टीपल क्लास में सीख सकता हूँ ना। इसमें भी देखा जाता है। मैं उस पॉइंट से बोल रहा हूँ कि जहाँ पे कोई भी हो, मतलब वाटर है ना, प्रीसियस रिसोर्स, देखते हैं इसमें क्या है। Yes, I think ये water cycle we can. ये वाटर साइकिल है ना? Yes, a water cycle is there. Yes. ठीक है। अब ये वाटर साइकिल का ये है कौन सा, वाटर प्रीसियस रिसोर्स, क्लास 7th में। तो मैं इसमें क्लास 7th साइंस मैं जाऊंगा वाटर प्रीसियस रिसोर्स, ठीक है। उसका लर्निंग आउटकम है, अभी तो ये वाला डालता, हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, तो इसमें अब ये कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ गया। अब ये सेम हिंदी में भी आ गया, साइंस की उसमें आ गया, सोशल साइंस में जहाँ पे भी होगा, सोशल साइंस में भी है ये। Okay sir. I think geography की कहीं पार्ट में होगा सर। हाँ बिल्कुल होगा, ये वाटर साइकिल तो होगा कहीं पे, वाटर साइकिल। सर वो क्लास 7 की ज्योग्राफी में है, लेसन 4 है, if I'm not mistaken, 7th क्लास। हाँ ठीक है, वाटर है, वाटर। यस सर, वाटर के नाम से है वो। क्लास 7, यस ये है सर। Yes sir, perfect. तो ये क्लास 7th में मैंने उसको सेम चीज को मैंने उसको जोड़ दिया, क्लास 7 ज्योग्राफी वाटर। सो आई जस्ट गो क्लास 7th ज्योग्राफी वाटर, ये है ओशियंस, नहीं ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, बिगिनिंग वाले में। तो ये हो गया, मतलब सेम चैप्टर जो है सभी के साथ जुड़ गया, ठीक है। अब मैं ये जो है ये हमारा स्पोर्ट्स में भी आ जाएगा, अगर मुझे करना है इसको स्पोर्ट्स बेस्ड में, इसको देखना पड़ेगा कौन सा वाला है। बट इट इज एक्चुअली ये छोटे बच्चों का गेम हो सकता है, क्लास 5th 6th में भी हो सकता है, बट एंड ऑफ द डे बाय द टाइम दे गेट इनटू दिस क्लास दे वुड हैव एक्चुअली लर्नड इट आल्सो। तो ये 3 जगह पे देखिए सेम चैप्टर, उसमें साइंस में भी हो गया, हिंदी में भी हो गया, ये भी हो गया, और स्पोर्ट्स भी। So that is how the whole thing will work. I hope this thing is clear, right? तो सेम को हम अलग अलग तरीके से, सेम गेम है बट इसको अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं उसको। जी सर। ठीक है, so we can actually do that thing by providing more here. So I hope ये करके, बाकी already 5 o'clock हो गए, so it's been a long day. बाकी तो आई एम श्योर दिस इज एन एक्सरसाइज। तो हम हिंदी के लिए विल स्पेंड टाइम ऑन सैटरडे, जी सर। सैटरडे 4 ऑनवर्ड्स। अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज ट्राई इट आउट आल्सो। सर मेरा वो ग्रामर वाला ही था, अगर हम ग्रामर को कैसे भी कोरिलेट करके ना, तो सर दैट कैन बी आई थिंक, क्योंकि मेन सर अगर हिंदी में देखेंगे तो हमारी पाठ्य पुस्तक और हम ग्रामर को ना एज ए सब्जेक्ट में लेकर चलते हैं। तो अगर ग्रामर के लिए हम इस तरीके से कोई कोरिलेट करें तो वो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, और वो और ज्यादा इंटरेस्ट ले पाएंगे सर ग्रामर में ना। ठीक है, और वो ठीक है मैम, कर सकते हैं, ठीक है। we can आप थोड़ा सा सोच के आइए, बीच में आप लिखिए, मतलब आई थिंक इट बी गुड दिस थिंग। ठीक है सर, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। चौहान सर। हाँ जी, स्टेज इज योर्स। सही। हाँ सर बताइए। I think we have gone through almost every aspect of what we intended to do, and I hope by now our respected subject coordinators and the regional coordinators must have got an idea that what basically is the requirement of NEP.
here we are trying to integrate not only sports with one subject, but also integrating the other subjects also. So what actually we are doing is that to lessen the burden of the child, to be focusing on different activities, he can also focus on a single activity and thereby have learning outcomes achieved for various other subjects also. The activities, of course, initially would be looking very difficult without how to do it, but once you get into the pace of thinking, then ideas do come and we do modify things. And I think when the physical education teachers will also join, we will have two different outcomes. One for the physical education teachers, that what they expect regarding the fitness and the awareness of the child about his health and well-being. At the same time, the learning outcomes of the subject will also be obtained. So this, I think, is a new initiative which has been taken up by NVS. And I must congratulate the administrative machinery of NVS for having taken up this step. And I think the other schools will also, chain of schools will also follow the suit. As rightly pointed out by Mr. Rajan also, that why don't you take something in the field of art? Yes, sir, this is in our mind also. In fact, our advisory committee is also thinking in these terms of thinking about the different fields of interest of the child. Not only art, but it could be music also, it could be dance also, and it could be agriculture also. Because agriculture is one field where probably Navodaya Vidyalaya can really take a lead. So I was attending one of the webinars of ICAR, which was conducted recently, and I was given the first opportunity to speak on this because I belong to the school education. And you'll be happy to know that there is a very serious thought process and action which is being undertaken by ICAR to introduce agriculture as a stream at the school level. So this is something which is going to really revolutionize even the vocational side of education. So we hope that our joint effort in bringing about sports and academic subjects together will really prove to be a boon to the students. And I'm sure even the teachers would like this particular attempt, because here it is not that a single teacher is responsible for the growth of the teacher, for the student, but it is our joint effort. If we expect our child to be innovative, to be critical, to be creative, then it is absolutely necessary for all of us to join hands and prepare a platform for the child so that he can think independently. A child would definitely work for innovation and creativity, provided it belongs to his field of interest, number one. And secondly, he has the confidence of the subject. And here the subject would not be maths or science or this, but the subject would be basically his interest and his acumenship in creating something. So if he wants mathematics in his as a help in creating something, then he'll definitely go for mathematics. If he wants science to be there, it should be there. And if it is social science or language, then it will be there. So I think this is a very good attempt made by everyone, each one of us who have been attending this. And I have seen, subject conveners and even senior persons from your regional offices and the training institutes. They have been attending sessions after sessions. That only shows that their interest for doing something new. And on behalf of our organization, I really am very thankful to NVS for having taken this initiative. And we hope that in the coming times, we will be doing much more than what we have done today. Thank you so much. Thank you everyone for being very actively involved in this process. Thank you, Mr. Rajan. Thank you, sir. Thank you, Johan, sir. Thank you, Sujit, sir. Thank you very much, sir. Rajan, sir, you're Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you.
Sir, can you just wait? Mr. Rajan will speak. So kindly wait. Okay. Yes, sir. Rajan sir, your voice is not clear, sir. Your voice is not coming. NPR. Rajan sir. I think unmute it, please. You have to unmute, sir. Can I say something, sir? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Please, sir. Sir, I am calling from NLA Goa, sir. Yes, sir. Sir, at the outset, I am very much grateful and thankful to the team of, Panigrahi sir, Chauhan sir, and other resource persons, sir. For the 2 days, you have actively engaged all the NLA deputy commissioners, assistant commissioners, and other subject coordinators, sir. The session was very much, interactive, very much, important for us. And when we actually involve with the teachers, who are the real practices of the subject teaching, then we'll be getting more meaning over there. And along with the PETs, thank you very much, sir. And from my side, I have small query with our Panigrahi sir. Yes, sir. With regard to this lesson plan or activity plan, sir, there are 6 important steps as you have suggested. Number 1, learning outcomes, then description, then classroom learnings, and narration, coaching, teaching tips, and equipment. Almost all of us are very much comfortable with the first 3. That is learning outcomes, description, as well as classroom learnings. We know very well. But the remaining 3, my question is, have you adapted from other sources or have you devised on your own, sir? This is what exactly I want to know. Okay, sir. Actually, it's very simple, sir. Actually, I'll tell you the last 3. One is a coaching tip. Coaching tip was a teacher's tip. It's a tip to the teacher that what are the things that a teacher should actually do. So that is actually, sir, very simple. Basically, if I'm teaching, what are the things I need to keep in mind? So I need to keep in mind the subject outcome. If there are 1 or 2 subject outcome, I should know about it. So that is one is a coaching or the teaching tip. Another one is variation. See, there are certain variation. Like I just told you that the variation can be that instead of water cycle, if I want to show rock cycle, I can actually do that, right? So what are the different variations? So can I teach, let's say, the value of respect through kabaddi? I could say that instead of kabaddi, you can also use, let's say, tug of war. I'm saying that, so the simple variation that you can do. So in the activity, let us say that I've written walking, but the variation can be, it can be running also, or it can be running forward, running backward. So this is all simple things which is about variation. And the last item, sir, is equipment. So what are the equipment that the school needs? So when I'm creating a lesson plan, I should be cognizant of this fact that most of the schools may not have equipments. But I may need chalk powder. I'll just write chalk powder. I need some cone. If then I say that in case cone is not available, use a brick or some sort of marker. So the last one is equipment. Equipment is, see, anything that you do, you need an equipment. If I have to teach mathematics also in the classroom, I need a chalk and a duster, right? So that is the equipment that I need. I need a blackboard. I need chalk. I need duster. So similarly, when I'm doing it on the ground, what are the basic things that I need? If I have to teach cricket, I need a bat and a ball. So that is why it is. So these are the 3 things, are very simple things to do. Nothing. Okay, thank you. Thank you. Rajan, wait. Okay, fine. For each and every activity plan and lesson plan, we need to have compulsorily all these 6 steps. Yes, sir. I think it is mandatory for every lesson plan. Yes, sir. So you can just say not applicable also. Okay. Chauhan sir, you want to say something? You want to add something? I'll just add on. This activity plan is basically for the activities, integration of the activities of the subject with the sports. But the actual lesson plan, which is prepared by the teachers, would have some more components, right? There will be a diagnostic tool also. There will be assignments also. There will be a project also. So that will make a complete lesson plan, which we have not touched so far. Yeah. This is going to be the complete plan then. So we'll have concepts, we'll have activities, we'll have diagnostic tool,
we'll have assignments. Yeah. And then we'll have projects. So then it will make a complete lesson plan, which will be the integral part of it. But here, what Sujit has explained to you, this pertains to the activities-oriented part. So these activities are actually linked with different concepts. So linkage of concept and activity will be there. And later, at a later date, the other things, home assignments and other things will follow later. Since we don't want physical education is about doing it on the ground. So that is why the assignments are not there. It's actually on the ground. Thank you so much, sir. Thank you very much, Chavan sir. Thank you very much. Thank you. Rajan sir. Okay, thank you very much. So here, okay, thank you very much, Pujitji and Mr. Chavanji, for your what is it regarding this session, 2 sessions we have conducted, and you have given a lot of information to the subject coordinators and our regional coordinators. Thank you very much. Now I would like to touch a few points. Number one is that we could not allot some classes, some assignment to Pune region regarding the mathematics and the social science. And because our Sadia Shukla, with the help of the Dr. Patil and Mr. Naran Singh, please engage these 2 subject coordinators, what is the mathematics and social sciences. You can also get the help from the mathematics and social science based principal from your region, please. Second thing is that we are going to organize NVS National Workshop for the subject teachers 22nd, 23rd July for 4 regions, Hyderabad, Pune, Shillong and Chandigarh. And 22nd, 20th July, Bhopal, Jaipur, Lucknow and Patna. And the email address and the name of the subject teachers I have already been sent to the personal email ID of subject coordinators and also the of all region officers, nominated assistant commissioners of all region officers, and then also NLI directors, deputy commissioners of NLI directors. Just we have sent and now it is confirmed also. Please check the email. Okay, thank you, one and all. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Namaste to everyone. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much.